Yeah. So good evening, and how was the practice? Like those of us who are here, how did it go? The hard practice. अच्छे से हो गया. अच्छे से हो गया. What did you feel like? You felt the same way for all the 10 desires? 10 नहीं, मैं तो 3 के लिए किया. टॉप 3 करना था ना. अच्छा. टॉप 10. अरे बुक में लिखा है सारे करना था, 10 करना था. आपको एक ही नहीं बोला 3 करना है? नहीं, मेरे को ऐसे कल लगा कि शायद टॉप 3 करना है. कल जो मीटिंग में सुना मैंने शायद. Did I say 3? वो एक्चुअली लिखा था उसमें 10, लेकिन मैंने सुना था 3, तो मैंने 3 ही कर लिया. अब मालूम नहीं, मैंने इमेजिन तो नहीं कर लिया. Maybe, see, I did say 3, but not in this session. Maybe right in the beginning I had said 3. Okay, but this time we have been following कि जैसे बुक बोल रही है हम लोग वैसे ही कर रहे हैं. एकदम शुरू के सेशन में I had told 3 because उस समय आश्विन मैम ने 3 बोला था करने के लिए. But इस बार जितने बार भी दोबारा भी जब आश्विन मैम की संख्या, तो she has been telling us 10 only. Like we have to go by what the book says. Only for visualization I had said that we are doing it every day. You can do it for. हाँ, मैंने वही वाला पार्ट सुन लिया होगा और वही वाला कैच कर लिया होगा. बाकी का घूम गया होगा. लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. Okay, no problem. What you can do is उसमें reading में तो I think इतना आपको नहीं लगेगा. You just have to put your hand near your heart and and think and say thank you. So after this also you can just do it. I feel from tomorrow onwards, right after your blessings, just read your dream list once with your hand on your heart. I think that should be a good thing, because she's telling us now if you really want your dreams to be fulfilled, you can do it as many times as you want. So at least एक बार तो हम लोग कर लें. And visualization, either 1 dream or 3 dreams. माने जितना आपको मानो उतना. ठीक है? Right. Yeah. So Kavita ji, how are you feeling in this session? Are you doing it with a fresh mind? कि हाँ आप first बार ये practice कर रहे हो? Yes, of course. Very nice. It happens because the many times we do na, some of the other things we get more into that to learn more. And और ज्यादा डीपली हम करते हैं वो प्रैक्टिस को. बिकॉज पहले सेशन में समझो ऐसे गाई गड़बड़ में कुछ रह गया या कुछ हो गया, तभी अपन एक इंटरेस्ट से करते हैं. सेकेंड टाइम जब करते हैं तब एक्साइटमेंट रहता है, और तब अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हुआ रहता है. वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से किया जाता है. And it gives immense pleasure and happiness. Yes, very nice. Yeah, it's fantastic. Actually, again, I'm getting a food example while you are saying. It's like पहले बार जब हम लोग आइसक्रीम या चॉकलेट खाते थे, it is like wonder. Next time you enjoy and relish it more. Third time you're looking forward to have it, right? Yes. Super. Actually, I'm a foodie since childhood. What to do? जैसे आप बता रहे थे, मुझे हाँ ऐसे आता है मुंह में एकदम ऐसे. Same. Anything, yeah. Same but different. Yes. Yeah. Yes. So, Sweta ji, did you do the practice? Yes, I did, Priya. Actually, I wanted to tell you, मैंने जब पहली बार किया था, I done it with Suvarna. So I didn't do the practices. I just wanted to know कि कि क्या है ये. So बीच में मेरे classes भी miss हो गए थे and all that. So I think the first time when I didn't do the practices itna. But I did little bit, like, probably inculcate the gratitude and all that. And जब power किया तो थोड़ा सा और लगा मुझे कि I'm influenced. Like I had a lot of doubt. Very logical person. So to convince my mind, I think was the biggest challenge. To accept something new which I had not been doing, like all my life I've been taught one thing, and suddenly now to accept a new a school of thought was very different. So initially then second time kuch zyada like influence. I remember first time maine sirf money ka every time thanking. Second time food ka ho gaya, like I would never remember, but now I'm remembering. Every time I even take a sip of water, consciously mujhe aa jata hai, like I don't have to try anymore. So I see that third time abhi main ye kar rahi hu, jaise power I did with you last time, now I'm doing this. So I think it is getting better. I'm not a very disciplined person, unlike Ruchi. Ruchi to first time say everything, she'll be 10 on 10. Sab kar liya, I'm totally opposite. I'm very laid back. So I think dheere ho raha hai, So I'm getting there, yeah. For me also, when I started, I would forget the food thing. Okay. In fact, in the second practice also, I don't remember. Each time I would remember after eating. And I'll see my mom do it. I was like, oh, मैं फिर भूल गई. I said, नहीं, book में लिखा है खाने के बाद भी करने से चलता है. But still, correct. It's a process. But for
लाइफस्टाइल ना, तो Yeah. थोड़ा टाइम लग रहा है, आई थिंक दैट्स व्हाट. And water, I easily remember because I feel I've like, see, I'm a water science, so as it is, I love water. I love drinking water. So हाँ. water के लिए automatic आ जाता है. It's like each time having a sip, I'm like, you know, मैंने वो ऐसे meditative type का आता है. Thank you water. You know, initially when I started, I would look at water. The हाँ. first time I would look at water, thank you water, and that is what my niece also learned. अभी she had gone to her nanny house, तो थोड़ा थोड़ा भूल गई, उसको फिर से याद दिलाना होगा. And you Correct. drink water and you say thank you. So ऐसा लगता है कि yes, it's listening, it's looking back at you. तो ऐसा लगता है. तो Correct. Since you're a water sign, I think connect भी है. could be. That's what I think. It's just all beliefs. Yeah. Correct. Yeah. So very good. So how did you feel with the heart magic? Did you do it for the first time? Yes, I did it for the first time. Yes. So मुझे ना, like, even it's very difficult to imagine and visualize. I think I'm still in the process. For me, it's easier when something is in, you know, face to face to actually imagine. See, it was very easy when you are saying and I'm trying to close my eyes. But when I'm doing it alone, then it becomes a little like, I think I'm yet to get there. Yeah. So can I help you in that for all those people who are finding it a little difficult to visualize just on their own, you know, without any guidance? You can write it down. Okay. It will take some time. Take one dream. Okay, write it down. Is it as if where are you going? What are you wearing? Even if you have to jot down points that yes, you'll be wearing a red sweater or maybe some muffler or some boots. Now, what Correct, are the boots? If you just make some pointers and then you can visualize. Okay. No. Take it as More detailed, yeah. basically. Then it is Work easy. on the details that, you know, till I get the feeling, I guess. Okay. Yeah. So Charuji, you're saying I have to repeat the whole heart magic meditation, but first you have to switch on your camera. At least I've not seen you also. Oh yes, it is. See what happens. Wait, आता है अंदर से. Let's see if it is possible. We'll do it. Otherwise, today's practice is like really amazing. It's one of the most favorite of all the practitioners, I'm sure. Like whoever has done this practice, who have done today's practice, it's like एकदम तुरंत उसका result आता है. ऐसा practice है वो. So if time permits and everyone wants, then we'll do a visualization, but not necessarily a heart visualization, heart magic. I would rather, you know, do something where you visualize about your dreams. Yes, Swati, you would want that? Everyone say it should be more about your dream. Yes. No? So maybe we'll just touch a little bit of the heart, or not, just do some general gratitude, happiness, and then we can move on to the visualization. Okay, so we can do that. So anyone else who did the heart magic, how did you feel? आपने पढ़ा, कैसा लगा आपको? With each practice, did you feel more gratitude? No, किसी ने नहीं किया, it seems. Please do it after the session. ठीक है, उसको पढ़ना है एकदम. Yeah, please do it. Yeah. नहीं, मैंने किया उसको, लेकिन मेरे को ऐसे एक्स्ट्रा ग्रेटिट्यूड नहीं, नॉर्मल ग्रेटिट्यूड अच्छा ही लगा. मतलब अच्छा, ठीक है. नहीं, इसके पहले जब आपने पढ़ा था, आज आपको बोला था ना कि it's like you have to, you know, feel it, like you have to feel more gratitude, you have to, you know, close your eyes and visualize that, you know, that thank you is coming. वो मैंने किया. तो थोड़ा सा ने अब वो होने के बाद थोड़ा सा I felt better, but I did not know because it was of gratitude, or maybe कुछ ऐसे अपन तंद्री इसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड है, मतलब एक उसको बोलते हैं ना, जोन आउट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा. अच्छा, ओके. तंद्रा, ट्रांस. Like that way that you are somewhere in that dream. You're off from this world. That way? Hello? Yeah. Huh? You're off from this world. You're in that dream, like in a trance. That kinds? ट्रांस नहीं, लेकिन हाँ, वो मुझे मालूम नहीं वो ग्रेटिट्यूड की वजह से था कि मैं थक गया था या क्या था, आई डोंट नो. तो हाँ, बट थोड़ा सा एक मिनट के लिए वैसा थोड़ा सा हो गया था, एज इफ यू आर स्टेयरिंग एक जगह. अपन स्टेयरिंग करते रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, बेसिकली hypnotized types. हाँ, काइंड ऑफ, थोड़ा सा. Okay. ठीक है. See, it's a journey for everyone. I might feel something different, you might feel something different, so it's like it's your dream. आपको जितना टाइम लगे आराम से, उसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसे ही करना है कि नहीं ऐसे नहीं करना है. There is nothing like that. The only thing that I would want to add is like you should be only seeing positives. Okay. पॉजिटिव ही था वो.
हाँ, माने ऐसा नहीं कि अरे हम दुखी हो रहे थे, सामने वाला दुखी हो रहा था, वो सब नहीं सोचना है. इट शुड ऑलवेज बी दैट यू आर फीलिंग हैप्पी एंड पॉजिटिव. कुछ नेगेटिव नहीं आना चाहिए. दो आई एम सेइंग नेगेटिव, इट्स टू स्ट्रेस दैट यू हैव टू फोकस ओनली ऑन गुड एंड हैप्पी थिंग्स. Right. Yes. So thank you. And I think let's start with the warm up, and Smita has offered to read. So the others will join in and we'll do a wonderful practice today. Yeah. So please switch on your cameras and unmute yourself and be as loud as possible. अब देखिए ना, अधिराज ज्यादा जोर से बोलता है कि चैत्र ज्यादा बोलता है आज. वो मैं उसके साथ में हूँ नहीं आज. ओह अच्छा. Okay. ठीक है. So 1, 2, 3 starts. Shipra, Swati, unmute yourself, please. 10 little fingers. 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 and little 1 nose. little nose. Yes, wonderful. Latika ji is very fast. I'm very happy. Yeah. Yeah. So I'll just share the screen and we will start. Yes. Yeah, please read. Day 21, magnificent outcomes. Yeah. So now when you look at this picture, we see कहीं अंधेरा नहीं है इसमें. There is light on both the sides. दरवाजे के उधर भी, इधर भी. In fact, there is lots of light on the outside. And there is magic dust and the door is opening. Is it that this magic dust, switched on the light? It's like आपकी life normal चल रही है and आपने magic dust करके गेट खोला तो वहाँ और ज्यादा लाइट हो गई. Could that be the reason? Each time I see this ना, मेरे को हर बार वो याद आ जाता है. I used to see हम 5 a lot. How many of you used to watch हम 5? Me too. हाँ? Me too. Yes. Yeah. उसमें आपको याद है वो स्वीटी थी ना, उसका नाम? Yes. Yes. पिंकी थी. That curly Sweetie, hair. स्वीटी थी ना. Sweetie. हर बार गेट खोलने के पहले जाके गाना गाती थी. गाना गाते ही वे जाके गेट खोलती थी. Yeah? Yes. And seeing that, even my younger sister became like that. She would also, I said, and she is a wonderful singer. When I'm saying, आप समझ जाओ कि उल्टा बोलना होता है ना. She is a wonderful singer. And वो भी ऐसे करने लगती हूँ. मैं एकदम please, तुम स्वीटी हो, उसके तो एटलीस्ट थोड़ा ट्यून में गाती है, तो मत गाओ. And there are some people now who would get stuck on. She'll kill me. I will not say all this. ठीक है? So she also picked up this habit of singing and opening the door. तो आप देखिए एक डिफरेंट मूड हो जाता है. एंड यू आर सिंगिंग एंड हैप्पी, सो इट्स डिफरेंट ना. तो अगर हम लोग भी ऐसा ही करें, एंड ऑफ कोर्स हम लोग को गाना नहीं गाना है, बट इफ सिंगिंग मेक्स यू हैप्पी, आप गाना गा के भी गेट खोल सकते हो. प्लस प्लीज बी इन ट्यून. ओके, अदरवाइज आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग माय सिस्टर नाउ. सो एंड इट हैज टू बी लाइक यू आर हैप्पीली ओपनिंग द डोर. एंड दिस practice, this book is all about gratitude. So of course आपको gratitude करके वो गेट खोलना है, आपको gratitude करके वो फोन कॉल रिसीव करना है. In fact, whatever you are doing, you have to do gratitude in advance. Because अब आप देखिए, आज हम लोग वीक 4 में आ गए हैं. अभी तक हम लोग ने किया कि पास्ट का ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, फिर प्रेजेंट का ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं. अब जब हम लोग ने हमारी ड्रीम्स के लिए किया और कल की भी जो प्रैक्टिस थी, वी आर थैंकिंग फॉर थिंग्स इन एडवांस. ओके, माने कुछ होने जा रहा है, आपको पहले ही उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं. आपने देखा है कोई बच्चे होते हैं, उनको कुछ काम चाहिए होता है या उनको कोई हॉलिडे पे जाना है या मे बी नाइट आउट करना है. व्हाट, मम्मा प्लीज, यू आर सो नाइस, थैंक यू मम्मा, कैन आई प्लीज गो टू माय फ्रेंड. करते हैं बच्चे कैसे नहीं? आपने कभी किया ऐसा? या आपके बच्चे तो डेफिनेटली करेंगे. आई हैव आल्सो डन इट. मम्मा प्लीज, यू आर सो नाइस, थैंक यू, आपने हाँ कर दिया है ना. तो आज से हम लोग यही करने वाले हैं कि पहले से ही थैंक यू कर देंगे. आपकी अगर मदर इन लॉ ने बुलाया है डांटने के लिए, आपको नहीं पता, आप पहले से ही मन थैंक यू मदर, सो नाइस, शी इज गोइंग टू गिव मी अ गिफ्ट. हाँ, या बोलिए जाओ, मैं के चली जाओ 1 महीने के लिए, जी लो अपनी जिंदगी. आई डोंट नो, जो आपके मन में आ रहा है, यू कैन से लाइक दैट. स्वाति, वी कैन से दिस टू आवर मॉम एंड डैड की यस, जाओ नाइट आउट कर लो आज. हाँ, Gopa Didi had that example, no? Like her mother-in-law called and gave her diamond earrings. Yes, yeah. Seriously, if Gopa Didi is here, we'll ask her to share that. Yeah. तो बिल्कुल आज की प्रैक्टिस आपको यही सिखाने वाली है. एंड ऑन एंड ऑफ आई डू दिस प्रैक्टिस एवरी सेकेंड डे. कोई क्लाइंट के पास जाते हैं तो आई राइट इन एडवांस. व्हेन आई एम मोर वरीड, नॉट मोर वरीड, व्हेन आई फील दैट आई नीड द मैग्निफिसेंट आउटकम मच मोर, तब हम पहले से उसके बारे में लिख लेते हैं. एंड ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस इज मोस्टली अबाउट राइटिंग, बट इट कैन ऑल्सो बी डन जस्ट बाय योर थॉट्स. कि जितना ज्यादा आपकी फीलिंग्स अच्छी होंगी, जितना ज्यादा डीप ग्रैटिट्यूड होगा, आपको रिजल्ट भी आपके हिसाब से मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद
द प्रैक्टिस एंड सी हम लोग उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिसेंट? The best, like the best possible. Best possible. In Hindi it's written बेहतरीन. You know, ये तो word I don't think हमने हिंदी में कभी यूज भी किया होगा बहुत, but yes, it's that बेहतरीन. It's like best possible, like you said. Yeah, I can say excellent. Magnificent भी कम बोलते हैं. So you can say excellent, superb, fantastic, the way you want it, amazing outcome. Yeah, but the best possible is a very good one. Yes, we'll start with that. I'll start. Yes. कोई disturbance है ना कहीं और? Yeah, I'll just mute. Yeah, please read. Yeah. You say grace before meals, all right, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and the pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. Yeah. So now Rhonda Byrne has taught us to say grace, to say thank you before our meals. So now this writer is telling us a big deal. तुम सिर्फ खाने के पहले करते हो, हम हर चीज के पहले करते हैं थैंक यू. दिस इज व्हाट इट मींस ना. यू से ग्रेस बिफोर मील्स मतलब वी फील कि अब हमने इतना अच्छा काम चालू कर दिया है, वी हैव स्टार्टेड सेइंग थैंक यू बिफोर आवर मील्स. तो नाउ ही सेइंग ऑल राइट, इट्स लाइक बिग डील. उनको हमें पता नहीं होगा बिग डील भी एक वर्ड आ जाएगा. इट्स अ बिग डील. वो हर चीज के पहले थैंक यू बोलते हैं, हर चीज के पहले. बिफोर द प्ले, प्ले देखने जा रहे हैं उसके पहले भी बोल रहे हैं, कॉन्सर्ट के पहले भी बोल रहे हैं, बुक पढ़ने के पहले भी बोल रहे हैं, स्विमिंग के लिए. अब आप सोचो कि स्विमिंग नॉर्मल चीजें कोई कर रहा है, वॉकिंग, प्लेइंग, उसके पहले क्यों आप थैंक यू बोल रहे हो? आप तो खुद सोच नहीं रहे हो कि आपको कुछ उसमें डिफरेंट आउटकम चाहिए. नॉर्मल आप अपने वर्क भी रूटीन में भी अगर आप थैंक यू बोलने लगोगे तो उसका रिजल्ट कैसा होएगा? अच्छा ही होएगा. So he is telling us that we should be telling thank you before each and everything that we do, and the result will be amazing, you know, depending on what is the result that we want. So let's read how we use it, you know, in endless possible ways to get magnificent outcomes. Yeah, should I increase the font size, or is it okay? No, it's okay. It's okay. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. Yeah. So now this is very true. We all want good outcomes to everything we do. It's like आप अगर नहाने भी जा रहे हैं, you want ना कि हाँ आज अगर जो शैम्पू करें आज एकदम सही हो जाए. नहा के निकले तो ऐसे लगे 5 मिनट में नहाया तो ऐसा लगे कि बस फेशियल ही हो गया अंदर. We all want good outcomes in whatever we are doing, in everything we do. So and he's telling us that he performs gratitude before every action, because if you notice all these are actions: sketching, painting, swimming, fencing. माने ये नहीं कि वो खाली बैठे बैठे gratitude ही कर रहे हैं. अपने लाइफ में आप जो भी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें ऑफ कोर्स सब लोग अच्छा आउटकम ही चाहते हैं. उस सब के पहले अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड करने लगे या मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड यूज करें, इट विल गारंटी द आउटकम दैट वी वांट. ओके, नाउ प्लीज रीड. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. Yeah, so many a times, nahi, most of the times when children go to school for an exam, सब लोग बोलते हैं all the best, सब लोग बोलते हैं ना. कितने बार मम्मी लोग अपने फैमिली को भी बोलती हैं आज इसका एग्जाम है, प्लीज इसके लिए प्रे करना कि ये पास हो जाए. मम्मा लोग ये करती होंगी. या आपकी कोई मीटिंग है, देन ऑल्सो यू टेल योर फैमिली मेंबर्स कि यस प्लीज प्रे फॉर मी, कितने बजे मेरी मीटिंग है, अच्छे से हो जाए. सो नाउ Rhonda Byrne is telling us that all these thoughts that we have are about hoping, माने हम लोग चाहते हैं कि हो जाए. बट कुछ भी लाइफ में कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट नहीं होता है. ठीक है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता. अगर हम होप कर रहे हैं कि अच्छा हो तो वो कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, हम लोग को इसलिए होप नहीं, क्या लाइक we were discussing, now we'll read more about it in the book, but we don't hope कि आज हम जब बेड से पैर जमीन पे रखेंगे will we walk or will we just start flying or floating. We don't hope, we know for surety that हम लोग जब ये पैर जमीन पे रखेंगे तो हम लोग नीचे ही चलते चलते ही आगे बढ़ेंगे. will not start flying or floating. Yeah, because law of gravity is at work.
And Rhonda Byrne is telling us that it is all dependent or operating mathematically. Mane everything is happening because of science. Yeah, everything has a formula. Maths is like all formula. कि 2 + 2 4 ही होएगा. Yeah, 2 2s भी 4 ही होएगा. आज जो रॉकेट्स जा रहे हैं, ठीक है, कैसे हम लोग को सनसेट, सनराइज, मून सेट सब का एकदम एग्जैक्ट टाइम पता होता है बाय द मिनट. या पेपर्स में तो बाय द मिनट आता है, एंड आई एम श्योर वो लोग बाय सेकंड ही निकालते होंगे, वरना इतने ईयर्स से सेकंड अगर आगे पीछे होगा तो टाइम बहुत सारे चेंज हो जाएंगे. एंड टू द फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री, माने फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड तक पता होता है कि कितने बजे मून राइज, मून सेट होएगा. जो रॉकेट यहाँ से जो जाता है वो कब जाके कहाँ लैंड करेगा, वो जो सैटेलाइट जा रहा है वो कितने सेकंड में कितने स्पीड से जा रहा है वो पहुंचेगा. क्यों होता है इतना एक्यूरेट? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द लॉज ऑफ द यूनिवर्स. या दे आर फॉलोइंग दैट फॉर्मूला. वैसे ही जब पायलट, या आप ऐसे भी सोचिए ना, पायलट का एग्जाम्पल तो हम लोग पढ़ेंगे अभी, और सब कुछ इतना अच्छे से हो जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमको पता नहीं होता है, हम क्लाइंट को बोलते हैं हम आधा घंटा से पौन घंटा के बीच में आ जाएंगे, हम लोग 15 मिनट का एक मार्जिन ले लेते हैं. क्यों? अब बोले नहीं, ट्रैफिक तो का तो कोई फॉर्मूला नहीं ना, वो तो कभी भी हो सकता है, ठीक है. बट ऐसा नहीं है. आप अगर पहले से सोच के जाओगे कि हाँ हम इतने बजे पहुंचेंगे, तो आप डिट्टो उतने बजे ही पहुंच जाओगे. इसका एग्जाम्पल भी, इफ तुलसी इज देयर, शी हैड शेयर्ड विद अस कि वो लेट निकली एंड बट शी हैड done gratitude. And Tulsi, are you there? Yeah? No, she had shared with us कि उसने उसके बाद ये शेयर किया कि उसने ऐसे किया एंड शी रीच देयर एग्जैक्टली ऑन टाइम. उबर ने कुछ टाइम और बताया, बट उसको उस टाइम पे पहुंची तो मे बी उसका लेट हो जाता, तो उसने ग्रैटिट्यूड किया एंड शी रीच एग्जैक्टली ऑन दैट टाइम. तो वो इसलिए पॉसिबल है कि आप पहले से ही अगर ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो आप पहले से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो क्या करें? You're following the law of attraction. You are using the law of attraction, and then things will happen exactly the way you want. Okay, so let's read and find out some more about it. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. Yeah, तो आप देखिए पायलट भी, ठीक है, कैसे इंडिगो एकदम डॉट टाइम पे पहुंच जाती है. हमेशा कैसे पहुंच जाती है? मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स दे रीच ऑन टाइम. अब लोग नहीं, वो लोग प्रे कर लेते होंगे, मिलके ग्रैटिट्यूड कर लेते होंगे, इसीलिए सब पहुंच जाते हैं. कॉकपिट में बैठ के यही करते हैं. नो, डजंट हैपन लाइक दैट ना. अगर ऐसा हो, ऐसा पता चल जाए बाय चांस, तो विल वी एवर फ्लाई? नो, बिकॉज वी डोंट होप. या तो सब लोग लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं. आप जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हो या एक्सीलरेटर दबाते हो, तो आप ये होप तो नहीं करते हो ना कि मैं ब्रेक लगाऊंगी ना तो आज शायद ब्रेक लग जाएगा. नहीं ना, यू नो, आप ब्रेक पे पैर रखोगे तो ब्रेक हो गई. या आप अगर 2 व्हीलर पे जा रहे हो, आप ब्रेक प्रेस करोगे, आई थिंक हाथ में होता ना वो, या ब्रेक प्रेस करोगे तो वो स्टॉप होगी कार. तो वी डोंट होप फॉर सच थिंग्स, वी नो कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिकॉज दे आर ऑल फॉलोइंग द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज फॉलोइंग अ फॉर्मूला. क्यों वो इतना एग्जैक्ट बैलेंस पे? वी रेड इट इन द फर्स्ट चैप्टर कि वो अर्थ उसी एग्जैक्ट डिस्टेंस पे है, उसी स्पीड में धीरे धीरे अपना रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सन. व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज इट इज ऑल फॉलोइंग दिस लॉ ऑफ ग्रेविटी, द लॉज ऑफ यूनिवर्स, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जो भी आप उसका नाम बोलो, वो सब उसको फॉलो करें. और हमारे लाइफ में भी सब कुछ डिट्टो वैसे ही होता है जैसा हमारा थॉट होता है. इफ वी आर अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इन आवर लाइफ बाय आवर गुड वाइब्स, अच्छी चीजें आएंगी. If we are attracting negativity by thinking negative thoughts, negativity आएगी. Yeah, so there is no suspense, no hoping, no luck, कुछ नहीं होता है. जैसा हम लोग सोच रहे होते हैं, जैसा हमारे वाइब्स होते हैं, हमारी लाइफ में वैसी ही चीजें आती हैं. तो अब ये जो इतनी सारी हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये मैग्निफिसेंट आउटकम के बारे में अगर अपन पहले से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर लें, तो वो बिल्कुल वैसा ही होता है. एंड इट इज अमेजिंग. आप छोटे छोटे चीजों में उसको यूज करोगे तो 100% होता है. और जितना ज्यादा आप अपना ग्रैटिट्यूड का पावर यूज करके अपना मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, उतना ज्यादा आप अच्छी अच्छी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें भी इन सब में यूज कर सकते हो. या प्लीज रीड. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it.
या तो अब रोंडा बर्न हमसे कह रही है चाहे आप जो भी कर रहे हो, या दैट मीन्स एवरीथिंग यू डू एंड यू वांट गुड आउटकम्स, कि माने आपने कुकिंग की, आप कुछ बेकिंग करे हो, क्या पता वो केक अच्छी बने नहीं बने, सॉफ्ट है नहीं है, ठीक है, या आप कोई शॉपिंग करने गए हो, वील रीड मोर एंड मोर ऑफ सच एग्जांपल्स, बट व्हाटएवर यू आर डूइंग इन द डे, व्हाटएवर यू आर डूइंग, ओके, वी कैन यूज दिस लॉ एंड डिटरमाइन कि हमको कैसा आउटकम चाहिए, ठीक है, डिटरमाइन क्या, हमको तो अच्छा चाहिए, तो हमको इसीलिए प्रैक्टिस का नाम ही यही है, मैग्निफिसेंट आउटकम। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ गुड आउटकम्स, नहीं बोला, मैग्निफिसेंट टू द बेस्ट पॉसिबल, लाइक स्मिता यू डिस्क्राइब एकदम वंडरफुली, बेस्ट पॉसिबल आउटकम, बट आपको वो कैसे करना है, क्या करना है, खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो जाएगा या और भी कुछ करना है आपको? सी शी इज टेलिंग अस यू हैव टू यूज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है, थॉट्स फीलिंग्स एंड वो जो आउटकम चाहिए उसके बारे में भी सोचना होगा, एंड वी विल गेट दैट। या प्लीज रीड। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your friend about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or a wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. या तो आप देखिए ये जितने सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए, क्या आपने अभी पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि हाँ इसमें भी अच्छा चाहिए हमको, इसमें भी चाहिए, हाँ प्लम्बर आए तो काम करके ही जाए, ये नहीं बोले कि अब वो कल ये सामान लाएगा तो परसों आके काम करेगा, या एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, एनीथिंग, इट्स लाइक कि आपने अपनी फ्रेंड से भी आप मिलने जा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि वहां कुछ पंगे हो जाए, तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो, आप अपने बच्चों को बुला के कुछ समझाना चाहते हो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, आपकी मदर इन लॉ बुला रही है आपको, आप पहले से ही सोच लो अरे अब क्या मैंने गड़बड़ कर दिया, छोले में नमक ज्यादा था कि क्या था, यू नो, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन यूज इट, माने जिसमें भी आपको लगता है कि अरे ऐसा तो नहीं हो गया, रात में किसी का फोन आया तो हम लोग सोचते अरे इतने रात में क्यों फोन आया, सुबह किसी का कुछ डोरबेल कुछ भी अनएक्सपेक्टेड जो नॉर्मल रूटीन से डिफरेंट होता है, उसमें हम लोग को जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि वी स्टार्ट थिंकिंग द वर्स्ट, हर उस चीज में आप यूज कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल एनीथिंग दैट इज हैपनिंग आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं, कि किसी का फोन आया, यू डोंट, हम लोग क्या बोलते, ओहो फिर से इतने इतने बजे फोन कर रहा है, अभी तो इसको समझाई थी सारी बात, अब क्यों कर रहा है, एनीथिंग इस टाइप के जब अपन पहले से उसमें थॉट्स दे देते हैं, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर सेंडिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, किसी का फोन आया इतने बजे, लाइक सपोज अ मिस्त्री इज कॉलिंग मी एट दिस ऑड आवर, से अब क्या हो गया, साइट में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ऑटोमेटिक ऐसे ही आता है ना, किसी मेड का फोन आया सुबह सुबह, अरे इतने बजे क्यों फोन आ गया, ऐसा तो नहीं है तो छुट्टी कर रही है, शी कुड बी सेइंग कि भाभी जी हम जल्दी आ जाएं, ये रास्ते में ये सब्जी मिल रही बहुत अच्छी, वो ले आए, नहीं, हम लोग उल्टा ही सोचते हैं, तो जैसा अपन सोचते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, हमको बिल्कुल वही देगा, है ना, व्हाटएवर वी आर सेंडिंग द सिग्नल्स फॉर वी आर अट्रैक्टिंग दैट। तो अब ये जो प्रैक्टिस है इट इज गोइंग टू टीच अस दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग which we would have normally reacted in a different manner, in a negative manner, we have to control that thought and just use gratitude to change that situation for us. Yeah. तो आप देखिए इन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं एंड द गुड वंस आल्सो। अब बर्थडे गिफ्ट भी किसी को देना होता है तो कितना सोचना पड़ता है हम लोग को, अभी राखी आ रही है, कई जन सोचूंगा अरे इसको क्या दें उसको क्या दें, पिछले साल ये दिया था, अब तो लॉकडाउन हो गया है, शॉपिंग भी कैसे करेंगे, यू नो, आप वो सोच रहे हो, आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग ड्रेस में तो ऐसे खैर आई थिंक लगता ही है बहुत सारा टाइम है, और होम रेनोवेशन में तो हमसे पूछिए कितना टाइम लगता है, ठीक है, क्लाइंट्स एक जन क्लाइंट्स आर वेरी गुड, ठीक है, तो बहुत टाइम लगता है। रेस्टोरेंट में ही आप जा रहे हो, किस रेस्टोरेंट में जाना है, द होल फैमिली टू डिसाइड ऑन वन प्लेस एंड देन टू ऑर्डर द फूड, ओके, इज अनदर थिंग, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। आपकी नॉर्मल डेली मील्स जो आ रही हैं, मील्स नहीं मेल्स जो आ रही हैं, आप आई थिंक इट्स माय फास्ट एक्चुअली, सॉरी, हाँ बहुत सारी खाने की बात बनते, ठीक है, डेली मेल, डेली ईमेल्स, हाँ, टैक्स इवेंट, हर चीज के बारे में यू कैन यूज दिस मैग्निफिसेंट आउटकम,
Okay, so please read. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Yeah, तो वो कह रही है if you want कि नहीं ऐसे मन में सोचने से नहीं होगा, तो जैसे आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करते थे बिल्कुल वैसे ही आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हो. ठीक है, बिफोर यू स्विच ऑन योर लैपटॉप और यू नो यू ओपन द व्हाट्सएप कि आपने देखा कि नहीं कुछ एक डिफरेंट जन का मैसेज आ गया, मेल आ गया, या आप ईमेल ओपन करने जा रहे हो, तो इफ यू फील कि नहीं हम खाली सोचने से उतनी आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आएगी, तो यू कैन जस्ट डू अ मैजिक स्प्रिंकल डस्ट ऑन इट. या प्लीज रीड. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. Yeah, so she's telling us that instead of jumping to conclusions कि वो जो मेड ने फोन किया है कि वो नहीं आएगी, हो सकता है सॉरी वो कोई दूसरे रीजन से कर रही हो, हाँ कि नहीं आपको तो भाभी जी एक टेलर चाहिए था, बाजू वाली भाभी जी के पास एक अच्छा सा टेलर है, वो हमको मिल गया, मैं उसको ले आऊं. It could be that. If your mother-in-law is calling you, maybe it is for a gift and not for something that you have done, okay, or not done. Not necessarily that you will get a scolding or some advice. ऐसा नहीं है, ठीक है. बॉस ने बुलाया तो बिल्कुल ऐसा लगता ही है. क्लाइंट का जैसे I'll tell you, मेरे पास कभी सुबह सुबह क्लाइंट का फोन या मैसेज आ जाता है या शाम को कोई मैसेज आता है, तो जनरली कुछ मेरे को जैसे ना बारिश के टाइम पे आई यूज्ड टू गेट दिस बिग फियर. अभी कैलकाटा में जब पिछले साल ये सब तूफान टाइप की चीजें आ रही थी ना, इस साल भी आई थी ना कोई, तो many of my sites don't have windows immediately, तो विंडोज जब तक बन के आती हैं तो वाटर कैन कम इनसाइड एंड काम तो बाकी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो आई गेट वेरी स्कैर्ड. जैसे ही पानी आता बरस रहा होता है एंड कोई फोन आ जाता है, आई फील ओ गॉड ऐसा तो नहीं उनका पानी भर गया हो वहां पे और नीचे के नेबर, ऐसे तुरंत थॉट्स आ जाते थे पहले. तो नाउ आई एम ट्राइंग टू यूज दिस मैग्निफिसेंट आउटकम कि नहीं अब जो क्लाइंट का फोन आया एवरीथिंग इज परफेक्ट, उनको कुछ डिजाइन दूसरी आ रही है. सो नाउ आई थिंक लाइक दैट, बट इनिशियली इट वुड हैपन लाइक दैट एंड होता भी था. इसके बहुत पहले तो आयला कुछ टाइप का आया था ना, तो एक जन की वो शेड उड़ गई थी, अभी वो वर्किंग ऑन अ टेरेस, तो उसके बाद से ये और दिमाग में सेट हो गया था. तो मे बी आई वाज अट्रैक्टिंग मोर ऑफ सच थिंग्स, बट कुछ भी इस टाइप की चीज आती है तो नाउ आई एम स्टार्टिंग टू यूज, if not this practice then definitely whatever the call is about, it is something good. Thank you that this call is for a good thing. ऐसा हमने स्टार्ट कर दिया बोलना. तो आप भी देखिए आप कैसे कैसे इसको कहाँ यूज कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज फॉर समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड. अदरवाइज कुछ जो आपको पता ही है कि बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है तो क्या करना है, आप हॉलीडे पे जा रहे हो तो एवरीथिंग शुड बी गुड हैप्पी. वरना क्या होता है एक जन कोई ना कोई गुस्सा हो जाता है ना, सब लोग हॉलीडे पे जाते हैं तो उसके मन की बात नहीं होती है. तो इफ यू वांट कि नहीं एकदम परफेक्ट हॉलीडे चाहिए, यू कैन यूज दिस प्रैक्टिस फॉर दैट. आप मील पे जा रहे हो, कोई डिनर पे जा रहे हो, घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, फॉर दैट यू कैन यूज दिस प्रैक्टिस. आप अपना कुछ अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, कोई पार्लर जा रहे हैं, स्पा के लिए जा रहे हैं, देयर आल्सो यू कैन राइट दैट व्हाटएवर यू आर वांटिंग एकदम परफेक्ट उसका आउटकम हुआ है. सो यू कैन यूज दिस एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल. या प्लीज रीड. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. या ये भी तो होता है, हम लोग लेट हो गए, घर से लेट निकले तो पूरा सोचते हो क्लाइंट पहुंच गया होगा, हाँ डॉक्टर के पास कह रहे अब तो हम लेट हो गए हैं, तो क्या पता अब तो मेरा अपॉइंटमेंट चला गया, अब तो मेरे को लास्ट मिलने का और कितना वेट करना पड़ेगा वहां पे मेरे को. ऐसी चीजें भी अगर होती है, मिस अ फ्लाइट, मिस बस और ट्रेन, इसके लिए तो हम लोग छोटे में बहुत खुश होते थे. जब हॉलीडे पे जा रहे होते थे या वहां से लौट के आ रहे, काश मिस हो जाए फ्लाइट. हाउ मेनी ऑफ अस हैव थॉट, स्पेशली अभी तो और ज्यादा हो गया इनफैक्ट, जब लौट रहे होते हैं ना कैलकाटा तब लगता है ओहो ये छूट जाए फ्लाइट तो कितना अच्छा, फ्लाइट कैंसिल हो जाए, ठीक है तो हम लोग दूसरी फ्लाइट से जाएंगे. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट दिस इज बैड, हम लोग ये करते हैं हाँ कि काश छुट्टी हो जाए. ये भी ऑफिस के टाइम भी ऐसे होते, स्कूल की छुट्टी हो गई तो छोटे में हम लोग को अच्छा लगता था, मम्मी लोग को चिंता होती थी. बट इफ यू आर थिंकिंग दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग
is going is for the best, it is good, then we'll receive a magnificent outcome. But हमको उसके लिए पहले से ये thought process रखना पड़ेगा that we are in gratitude and we are thinking of a good outcome. ठीक है, not कि कि इतना ट्रैफिक है, मे बी कोई एक्सीडेंट हो गया, नहीं, नॉट लाइक दैट. इतना ट्रैफिक है, मे बी वहां पे कुछ हमको डाइवर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि वहां पे मे बी वाटर लॉगिंग है, यू नो, समथिंग पॉजिटिव वी हैव टू थिंक ऑफ. या प्लीज कंटिन्यू. If you're a parent and you're asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Yeah, ये तो है ही बहुत थोड़ा सा जनरली ये स्ट्रेसफुल होएगा ना कि पेरेंट्स के पास स्कूल का फोन आ गया कि नहीं आपका जल्दी आइए, ऐसा नंबर दिख जाता है ना आजकल, तो और ही टेंशन, क्या इसने किसी की पिटाई कर दी, हाँ नहीं तो वर्स्ट भी आ सकता है, क्या पता उसको कुछ हो गया हो, एनीथिंग, यू नो. तो उस समय ऐसा सोचने के बजाय इफ वी स्टार्ट थिंकिंग कि यस थैंक यू, इट मे बी यू नो दैट उसको कुछ, उसने बहुत अच्छा किया, उसका कुछ प्रमोशन और कोई स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है, उसलिए आप अगर हम लोग ऐसा कुछ अच्छी चीज सोच के अगर हम लोग वो फोन रिसीव करेंगे या कॉल रिसीव करेंगे या ईमेल ओपन करेंगे तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही पॉजिटिव होएगा. Yeah. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Yeah, so most of the time you will see, most of the time you will definitely see, because I have been using this practice like very often, and मेरे को तो maximum, like I had shared earlier, एक client के पास जा रहे थे, and क्या होता है generally clients ask for ना थोड़ा सा discount जब शुरू में जा रहे थे, I had sent my quotation, and उसके बाद मेरा meeting था उनके साथ, तो मैंने उसमें लिख दिया कि जो मैंने रेट लिखा है डिट्टो उसी में वो मान गए मेरे क्लाइंट, ठीक है, ऐसा बहुत रेयर होता था, but this time I thought okay let me try it out. बिल्कुल हमने ऐसे ही लिखा and I went for the meeting. तो क्या हुआ, क्लाइंट ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा डिस्काउंट करना पड़ेगा. ऐसे ओके ठीक है. आई केम बैक एंड ऑनेस्टली आई फॉरगॉट कि हमने ये लिखा था रेट वाला. आई वाज हैप्पी कि मेरे को ये प्रोजेक्ट मिल गया है एट माय रेट, ठीक है, हमने ये लिखा था. देन आई केम बैक, काम तो मिल गया, एंड दे सेड नहीं आप थोड़ा सा कंसीडर करिए. आई वाज लाइक ओके. आई केम होम एंड आई थिंक द नेक्स्ट डे आई sent him a revised quotation. So then he said कि देखिए ऐसा है, इससे तो कुछ होगा नहीं. The next time when I went to him with the drawings and all, he gave me an advance, and then when I went to him he said कि ठीक है देखिए इतना डिस्काउंट में कुछ बात नहीं है, you take the job. And I actually उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं लिया. I offered the discount but he thought नहीं इससे कुछ नहीं, मेरे को भी नहीं होगा, आपको भी कुछ नहीं होगा, you take at your own rate. कौन क्लाइंट ऐसे बोलता है? कोई नहीं बोलता है कि जो डिस्काउंट तो डिस्काउंट ना. And I was so happy, and then I came on, मैंने तो यही लिखा था उसके अंदर. हम ऑफ कोर्स कोई न्यू क्लाइंट का फाइनलाइजेशन के पहले आई वाज लाइक कि ठीक है जितना डिटेल लिख दो उतना अच्छा ना. तो आई वाज जस्ट राइटिंग कि वो मेरे को प्रोजेक्ट मिल गया, एंड आई हैप्पीली, पता नहीं कुछ थॉट आया होगा तो मैंने अपना रेट भी लिख दिया, ठीक है, कि हाँ मेरे ही रेट में मेरे को काम मिल गया. एंड जब उन्होंने नेक्स्ट डे ये बोला ना, आई वाज सो हैप्पी कि वाओ ये तो सच्ची में मैग्निफिसेंट आउटकम हो गया. तो एकदम ऐसे ही हो जाता है. यू विल बी अमेज्ड. मैंने लाइक व्हेन माय फर्स्ट सेशन, ये हमने शेयर भी किया हुआ है, बिफोर माय फर्स्ट सेशन आई वाज अ लिटिल less confident, I would say, very less confident. And so सब फ्रेंड बोले प्रिया मैग्निफिसेंट आउटकम कर दो एकदम ठीक होएगा. तो उस समय मेरे को उतना विश्वास धीरे धीरे आता ना करते करते, ऐसे ठीक है. एंड आई रोट, एंड देन आई वुड राइट एवरी डे, बिकॉज शुरू में काफी नेटवर्क चैलेंजेस होते रहते थे. एंड एवरी जस्ट बिफोर माय सेशन आई वुड राइट अबाउट द मैग्निफिसेंट आउटकम, यू नो कि सेशन ठीक है, लोगों को अच्छा लग रहा है, कनेक्शन आ रहा है प्रॉपर्ली, बिकॉज कनेक्शन वाज एन इशू एट दैट टाइम, आई डोंट नो हाउ. एंड आप जहां जहां इसको यूज कर सकते हैं ना, वो हर जगह आपको वही रिजल्ट देगा जो आपको चाहिए. ट्राई इट आउट, इट इज दैट अमेजिंग. एंड आई थिंक अगर यहाँ पे जो प्रीवियस प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे गोपा दी तो लिख ही रही हैं, या सेशन इज वंडरफुल, सेशन इज वंडरफुल, थैंक यू. अब नहीं लिखते अब तो मेरे को पक्का हो गया है, लाइक आस्क बिलीव रिसीव काइंड ऑफ हो गया है, ठीक है, कि यस ऑल द पीपल हियर आर हैविंग मैजिक्स इन देयर लाइफ. I write it just once before the actual session starts that they are seeing magics in their life. And when you are seeing magic, you will definitely come here, do the practice and see more and more magics. Now I write that every participant is seeing magics in their life. तो बिल्कुल ऐसा ही है. And Gopadi, please share that your mom-in-law called and you
व्हाट हैपेंड. स्वाति ने शेयर कर दिया था, बट आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा. हाँ ठीक है. आई थिंक गोपादी यू आर देयर. Okay, ठीक है. Maybe after the reading when she's a little free. Oh yes, she's here. She please share with everyone. Yeah. प्रिया थोड़ी देर बात करती हो अभी. हाँ. Okay. After the reading you can do. Yeah. So it is that good a practice. कि and मेरे को तो याद है पट्टू प्लीज कोई शेयर नहीं करता है तो कैसे आप लोग इंस्पायर करोगे. हाँ पट्टू you want to share or after the reading everyone. हाँ बाद में, अभी नहीं. You have to inspire. हाँ अच्छा, वरना तो मेरे को सबकी याद है, हम सबकी बता सकते हैं, बट लेट्स होल्ड ऑन फॉर देयर शेयरिंग. तो ये एक्चुअल में ऐसी प्रैक्टिस है कि आप अगर कोई अपने टेस्ट के लिए भी जा रहे हो तो आप पहले से ही सोच लो, बाकी सबको तो ग्रैटिट्यूड करना ही है. यू कैन जस्ट राइट अबाउट दैट व्हाटएवर योर रिपोर्ट इज, व्हाटएवर योर ब्लड टेस्ट इज, आपको जो उसका आउटकम चाहिए राइट अबाउट दैट. सो यू नो गुड टू हैव स्माइल्स एंड ऑल, बट आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो. आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हो डेंटिस्ट के पास में भी, या कुछ उसका टेस्ट है, एनीथिंग, या आपका कोई टेस्ट है, जस्ट नॉर्मल चेकअप भी है, वो भी तो हम लोग चाहेंगे ना कि उसका अच्छा रिजल्ट ही आए, कि विटामिन बी डी सब कुछ ठीक ठाक है, आयरन वायरन भी ठीक है, दैट ऑल्सो वी वांट. उसका भी आप रिजल्ट लिख लो कि जो भी आपने टेस्ट किया उसका रिजल्ट एकदम परफेक्ट है, एवरीथिंग इज इन द परफेक्ट नॉर्मल लेवल. या आपने वो लिख लिया. घर का भी कुछ है, कुछ रिपेयर का आदमी आया है या जो भी आया है, उसके लिए भी एकदम जो होना था वो एकदम अच्छे से हो गया है. ठीक है. रिलेशनशिप्स के बारे में भी, दैट यू आर गोइंग फॉर अ डिनर विद योर फैमिली एंड एवरीथिंग इज कूल, रिलैक्स, टेस्टी खाना आया, हाँ बिल भी ठीक था, फ्री डेजर्ट भी मिल गया, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड यू कैन राइट फॉर दैट. एंड इट इज यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन व्हाट वी गिव इज व्हाट वी रिसीव. माने इक्वल होता है ना वो, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो बिल्कुल वैसा ही होगा. एंड देखिए ना, एकदम गारंटी बोल रही है पांडापन, और ये होगा ही. आप करके देखना, बहुत अमेजिंग ये प्रैक्टिस है. या सो प्लीज रीड. Whenever you find yourself thinking there's a chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you're thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, which is bad outcomes, and it ensures you get what you want, magnificent outcomes. Yeah, so it is like each and every time you can control what the outcome you want is. Okay, each and every time. See, अब आप बोलोगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो सब चीज ठीक हो जानी चाहिए. देखिए, हर प्रैक्टिस में टाइम लगता है. कौन सी प्रैक्टिस में? ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में. आपने जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड कलेक्ट करे होगा ना, उतना ज्यादा आपको बिलीफ भी आएगा. कितने बार होगा, अच्छा ऐसा है, लेट मी ट्राई इट आउट. अगर ऐसा थॉट भी आ गया ना मन में कि लेट मी ट्राई इट आउट, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हर बार हो जाएगा, मीन्स व्हाट, यू आर डाउटिंग इट. आपको उतना बिलीफ नहीं है तो नहीं होएगा. ठीक है. सो यू हैव टू राइट इट विद फुल बिलीफ. राइट इट, या आपको सोचना भी है. देयर आर टू वेज टू डू दिस प्रैक्टिस. आपको पूरा बिलीफ होना पड़ेगा. ठीक है, कि यस जैसा हम चाह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा. ठीक है. एंड यू हैव टू यूज द क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड. क्वांटिटी तो है ही, बट आपको उतना बिलीफ, उन्होंने कहा ना, थॉट एंड फीलिंग से you have to think of the outcome, and that is what will happen. ठीक है. And she's telling us there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling, right? So you will get what you're feeling and thinking. If you are doubting, तो आपको उसी टाइप का रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि आपकी फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग है. Yeah, please continue. When you're grateful for magnificent outcomes, you're using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. Yeah, see this, when gratitude becomes your way of life. ठीक है. तो अब अगर आपको लगता है कि अभी वे ऑफ लाइफ नहीं हुआ है, अभी जस्ट हमने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है, तो थोड़ा ही थोड़ा रिजल्ट मिलता है. ठीक है. जब आप हर स्टेप में, हर चीज में आपको याद रहेगा, तो इट विल बी कि आपने सोचा और वो होगा ही होगा. मैंने सोचा मतलब हर बार आपको लिखना नहीं है. जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं उसके लिए तो आप मन में ही सोचोगे ना, थैंक गॉड की एकदम अच्छी मेरी मीटिंग जा रही है, थैंक गॉड दैट आई हैव गॉट दिस प्रोजेक्ट, या थैंक गॉड दैट द रिपोर्ट्स आर परफेक्ट. नहीं, रिपोर्ट्स तो आपको पहले से पता होता है, बट कुछ चेक आया कि नहीं, तो एकदम बिल्कुल वही अमाउंट है जो मेरे को कोटेशन में लिखा हुआ था. एनीथिंग, अगर उस सर्टेनिटी से आप उसको अपना वे ऑफ लाइफ बनाए हुए हैं ग्रैटिट्यूड को, तो जितना आपने सोचा है उतने ही सर्टेनिटी से आपको वो उसका आउटकम भी मिलेगा.
Okay, so and see this amazing line, changing hopes and chance into faith and certainty. So faith is belief or something similar. There's a difference in faith and belief, but changing hopes and chance into faith and certainty माने certainty कि माने एकदम guaranteed आपने जो चाहा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. Yeah. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. Yeah. तो ये कह रही है, the more you practice, the better you become. Yeah. तो जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे. और ऐसा क्यों होएगा? और ज्यादा अच्छे मैग्निफिसेंट आउटकम आएंगे. आपने एक बार किया, आपने देखा कि अरे इसका तो रिजल्ट आ गया, आपको उस पर और विश्वास होएगा, है ना. फिर आपको और विश्वास हुआ, आपका विश्वास स्ट्रांग होता गया, रिजल्ट और आते गए. इट्स लाइक जब तेंदुलकर बैटिंग करने जाता है तो क्या आप होप करते हो क्या पता हो कभी छक्का मारे? आपको तो पता ही होता है तेंदुलकर आया तो छक्का तो होना ही होना है. होता है कि नहीं होता है? या तो वो पहले से हम लोग को पता ही होता है. तो इट्स लाइक दैट आपने जितना प्रैक्टिस की है आपको उतना ही गारंटी होता जाएगा, आपको पक्का होता जाएगा कि व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस यू विल गेट व्हाट यू आर वांटिंग. या तो दिस इज व्हाट Rhoda Byrne is telling us in this line. And जब हम हमारे लाइफ में हम हर चीज के लिए इसको करने लगेंगे मैग्निफिसेंट आउटकम, तो ऐसा होगा ही नहीं कि हम गलत जगह पे गलत समय होंगे. यू विल ऑलवेज बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. आपने सुना होगा ना कितने जगह बोलते हैं कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है या अच्छा कोई रोल मिल जाता है. दे से आई वाज देयर एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस. ऐसा नहीं होता है. दैट पर्सन वाज देयर बिकॉज he or she must have been in gratitude. उनके कर्म अच्छे होंगे, उन्होंने अच्छे बीज बोए होंगे ग्रैटिट्यूड के, इसलिए वो राइट प्लेस एंड द राइट टाइम पे रहते हैं वो. ठीक है. फिर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो हो मेरे ही ऐसा क्यों हुआ. ऐसा नहीं होता कि कभी चिड़िया पॉटी कर देती है उसी दिन बाकी सब भी गड़बड़ होने लगता है. हैव यू नोटिस दिस? उस समय अगर आप बोले नहीं नहीं ये तो लकी है, देन यू फील हाँ ठीक है. तो आप जैसा फील कर रहे होते हैं वैसी वैसी चीजें होने लगती हैं. द मोमेंट यू सी द ब्लैक कैट आपको लगता है वो अब नहीं, अब तो आज तो दिन ही गड़बड़ होने वाला है. हैव यू नॉट फेल्ट इट? इन स्कूल वी यूज्ड टू डू इट ना. 1 for sorrow, 2 for joy. Remember Swati, in our school there were so many of those manna words. हाँ, तो अगर 3 दिख गई तो बहुत खुश, 1 दिखे तो पहले से हम लोग सैड हो जाते थे. या तो वैसे ही हो जाता है. हम लोग पहले से जैसा सोचने लगते हैं हम लोग वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं हमारे लाइफ में. Yeah, please continue. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you. Because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Yeah, so Rhonda Byrne is telling us that for tomorrow's practice we have to choose 3 a little नॉर्मल वाली एक्टिविटीज नहीं, कोई दूसरी एक्टिविटी आउटकम के बारे सिचुएशंस के बारे में आप सोच सकते हो. जैसे इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कल ही होने वाला है, बट आपको पता है कि वो होने वाला है, लाइक अ जॉब इंटरव्यू और डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. ठीक है. या मे बी आप कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, एग्जाम के लिए. इस टाइप की कोई आप 3 चीजें अपने लाइफ में चूज कर सकते हो. या उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि सिंपल जो आपके कल के रूटीन वर्क हैं उनमें भी आप ये आउटकम यूज कर सकते हो, है ना. कि मे बी आप बच्चों को लेने गए एंड यू डोंट वांट कि वो हो शांति से वो लोग बैठे रहे. ठीक है. कुछ हमको ट्रैफिक नहीं मिले, स्मूथली घर आ जाएं एकदम. वरना क्या होता है 2-3 बच्चे गाड़ी में बैठे रहते हैं, इधर थोड़ा सा कुछ palpitations होने लगता है. मे बी वो लोग क्या बातें करने जा रहे हैं, क्या फाइटिंग करने जा रहे हैं, यू डोंट नो. मे बी सडनली दे वांट एन आइसक्रीम और दे सी सम स्टोर एंड दे वांट टू हैव अ शेक और समथिंग. ऐसा होता है ना. इट्स लाइक यू गो टू अ मॉल. अभी आई थिंक थोड़े दिन पहले अपनी नीस के साथ मॉल पे गए. अब उसको तो टॉय शॉप के सामने से हटाना इज लाइक अ चैलेंजिंग थिंग ना. लाइक एंड देन इफ शी सीज द एस्केलेटर, जो उसके संग है ऊपर नीचे स्वाति you've done this. तो मॉल जाना नहीं होता. इट्स लाइक मोर लाइक यू आर जस्ट प्लेइंग विद द बेबी.
तो आप देखिए अगर ऐसा कुछ होता है तो यू कैन जस्ट राइट हाउ यू वांट द बेबी टू परफॉर्म और बिहेव, आप पहले से उसके बारे में लिख लो। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जा रहे हो तो आप जिस चीज के लिए जा रहे हो वो पूरी हो जाए, इंस्टेड ऑफ यू बीइंग अ लिटिल हैसल कि नहीं फिर से आना है, कोई पेपर छूट गया है, ऐसा होता है ना। यू गो टू द बैंक, अब एक फोटो भी चाहिए जो पहले नहीं बताते हैं, सडनली जैसे एक फोटो भी चाहिए, देन व्हाट यू डू, either you have to go get a photograph clicked and go back, or you have to come some other day, so it is a little challenging। तो ऐसी भी कोई भी चीज है आप उसके बारे में पहले से ही लिख सकते हैं, ठीक है। और मे बी यू आर गोइंग टू बेक समथिंग एंड सडनली यू रियलाइज कि उसमें कोई एक इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने सुबह ही सोचा हुआ ऐसा कुछ करना है, यू थिंक डू दिस प्रैक्टिस एंड थिंक अबाउट द आउटकम। बट अब इसको करना कैसा है, लेट्स डू दिस, लेट्स रीड। Make a written list of 3 situations you've chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. Yeah. Okay. Should I continue? Yes. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words, "Thank you for the magnificent outcome too." Yeah. So what you have to do is tomorrow, right after the blessing, see, it is always better to do this practice first thing in the morning, yeah, so that you know कि आपने किसके लिए लिखा है, कैसा दिन जाने वाला है, कैसे आपको करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 चीजों के बारे में आपको ऐसे लिखना है, like how I write, I will tell you, instead of 1 thank you I write 3 thank yous, because 3 is a thing for creation ना, उन्होंने बोला तो I use it 3 because I want कि नहीं जैसा हम चाहते हैं एकदम बिल्कुल वैसा ही हो जाए, okay। So I write thank you God for the magnificent outcome to this meeting where the client agreed to my designs, the client, and he loved my design and he was appreciating my designs, ऐसे जितना आप जैसा चाहते हो आप वैसे ही लिख दो, ठीक है। तो आपको 3 चीजों के बारे में मैग्निफिसेंट आउटकम ऐसे फ्रेम करके लिखना है, ठीक है। सो आई हैव टोल्ड यू हाउ आई राइट, आपको जैसे लिखना है, इफ यू वांट टू राइट लाइक दैट यूजिंग 3 थैंक यूज और जस्ट द वे हाउ रोंडा बर्न हैज टोल्ड अस, वो करना है आपको। तो आपको कोई भी 3 सिचुएशंस, नॉट नेसेसरीली कि वो कल ही होने वाली है, मे बी, बट नॉट, इट शुड नॉट बी कि आप 1 महीने की बाद की लिख रहे हो, नो, यू वुड वांट टू यूज दिस प्रैक्टिस एंड सी द रिजल्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। तो जो मे बी 1 वीक के अंदर अंदर की कोई चीज होगी आप उसको लिखिए, ठीक है। उस टाइप की कोई 3 चीजें आपको लिखनी है। एंड सेकंड में क्या करना है, कल पूरे दिन में मिनिमम 3 चीजों के बारे में आपको पहले से ही सोचना है। बहुत सारे फोन्स आते हैं आपके पास, जैसे हमने कहा कि घर में भी आपको मदर इन लॉ बुला सकती हैं, हस्बैंड बोल सकता है अरे मेरी अलमारी का सामान कहाँ चला गया, सडनली यू से व्हाई ही इज कॉलिंग यू एंड देन यू, अरे क्या हुआ, आज ही मैंने वार्डरोब ठीक की थी, कुछ पेपर खो गया, इट हैपेंस ना। मेरे घर में पापा और मम्मा का ये काफी चलता था, हु टच माय ड्रॉर, किसने मेरा सामान इधर उधर कर दिया, द डे मॉम सेटल द ड्रॉर्स उसी दिन डैड वुड से दैट। तो अगर सडनली ऐसा कुछ है तो यू कैन थिंक कि पहले से ही ओ थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, ये जस्ट आपको सोचना ही है दैट ही हैज कॉल्ड मी फॉर समथिंग नाइस, व्हाटएवर, ऐसा टाइप का आपको चीज सोच सकते हो, ठीक है। और दिन में 3 करने हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक रोंडा बर्न इज टेलिंग अस, इट इज नॉट अबाउट द इवेंट बट इट इज फॉर अस टू use this practice as much as possible. Yeah, please continue. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you're hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Yeah. So again, Rhonda Byrne is telling us that there is never an excess of this practice, because जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे एंड उतना ज्यादा आप और इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एंड योर लाइफ, योर event, your outcomes will keep on happening the way you want it, right? So because you are not leaving anything on chance. आप
कुछ भी कर रहे हो, इट्स लाइक इफ आई से कि नहीं आपके बच्चे का एग्जाम है, आप रिपोर्ट लेने जा रहे हो, ठीक है, वंडरफुल एग्जाम्पल, आप लाइक वंडरफुल आउटकम बिकॉज आप वैसा चाहते हो वैसे ही होएगा। वो एग्जाम देने जा रहा है, आपने उसमें भी कर दिया। वो घर आ रहा है कि नहीं शांति से होमवर्क कर ले, ज्यादा उछल कूद नहीं मचाए, उसमें भी आपने कर लिया कि यस। तो आपको जितना ज्यादा जगह आप इसको यूज करोगे उतना ही आपके मन के सारे आउटकम्स होंगे। ओके, इट विल बी ऑलवेज दैट यू आर इन द राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम, वो ऐसा ही होएगा फिर, ठीक है। सो दैट इज what she's telling us and we are never leaving anything on chance. अब हम लोग यही करते हैं, some of us friends, we are into, आपको पता ही होगा, सुवर्णा, पायल, we are all friends। तो अब हम लोग कुछ भी इशू भी आता है ना, तुरंत बोलते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम कर दो, माने कोई और सजेशन देना ही नहीं चाहता है, ठीक है। इसलिए बोला क्या करे, ये लेके आए, यहाँ जाए, वहां, कुछ नहीं, तो तुम ही करो जो तुमको करना है, ठीक है। पहले होता था ना ये, हाँ इस शॉप में जाए, नहीं कोई नहीं आजकल ऐसी बातें करता है, तो सजेशन टाइप की बात ही नहीं होती है। मतलब बट लिखें क्या, ये तो बता दो एटलीस्ट, कि क्या लिख सकते हैं, इट्स लाइक व्हाट काइंड ऑफ एन आउटकम। So it is totally on you, and this is a wonderful practice. Of course, we have to use our imagination because we want the outcome of how we want it. Yeah. So, Gopadi, you want to share now or later? Okay, so let's read the practice and then she will share. Yeah. Magic practice number 21, magnificent outcomes. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. At the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Third, list your 3 things and write each one as though you're writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. Fourth, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome too. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah. So thank you, Smita ji, for reading so nicely for all of us. Yeah. Thank you for the opportunity. Thank you. Just wanted to point this out that आप देखो, she's telling us that beginning of the day ही लिखना है हम लोग को, and 3 important things or situations that are important to you. Not necessarily कि आपको एक हफ्ते का ही सोचना है, कल भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं रोज डिनर के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स की बात होने लगती है, कुछ और बात होने लगती है, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि yes, I'm so thank you God, I'm truly grateful for the magnificent outcome to this dinner where everyone is chatting happily and sharing the day's events. आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, anything that you feel is important, you can write for that. Yeah. So any questions about the practice? तो रिपीट कितने टाइम कर सकते हैं दिन में? रिपीट करना है इसको? आप जितने बार करें उतना अच्छा है। आपको पहले मॉर्निंग में लिख लिया, उसके बाद में उसको रिपीटेशन? नहीं, उसको रेपिटेशन नहीं, वो तो आपने लिख दिया, ठीक है। फिर जब आप दिन में जैसे कुछ और कर रहे हैं, मे बी आप लंच पे सपोज कोई आने वाला है, या आप कुछ कुकिंग कर रहे हो, या मेड कुछ करने वाली है, आप उस समय बोलोगे थैंक यू, मन में आपने सोचा कि ये सब कुछ अच्छे से हो जाए, आप वैसे कर सकते हो। कोई कॉल आ गया आपके पास सडनली, या घर में डोरबेल, सपोज आप ही गेट खोलेंगे और कोई नॉर्मल टाइम की अलग डोरबेल बजी, तो आप उसके लिए सोच सकते हो कि थैंक यू, इंस्टेड ऑफ सिंगिंग यू कैन से थैंक यू, कि कौन आया है, समवन विद अ गिफ्ट और अ पार्सल और समथिंग नाइस, आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, दैट वे। नो, आई वांटेड, आपकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है ज्योति की। सॉरी, मैं एक, अब आ रही है? हाँ थोड़ी बेटर है, हाँ बोलिए। ओके, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमने मॉर्निंग में लिख दिया, तो इसी विश को क्या हमको बाद में रिपीट करना है पूरे दिन में? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल रहा उन्होंने, ऐसा नहीं करना। देखिए एक बार लिखना ही है, एक बार लिखना ही है, बस फिर द मैजिक बिगिंस टू हैपन। यस, द प्रो इज आंसरिंग, यस। I practice this very much, magnificent outcome, मतलब वीक में 1 या 2 बार तो मैं कर ही लेती हूँ, बिकॉज किड्स के कारण कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही रहते हैं, जैसे कि दे नीड परमिशन एंड वो नहीं मिल रहा है, तो आई स्टार्ट राइटिंग एंड सच्ची मिल जाता है। मैजिक रियली हैपेंस, इसके ऊपर तो मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है।
मैग्निफिकेशन माने आप किड्स के लिए लिखते हैं और वो हो जाता है काम। बिल्कुल, जैसे दे नीड परमिशन, कभी कहीं जाना है या फिर दे नीड समथिंग शॉपिंग या कुछ भी, तो कई बार चैलेंजेस होते ही रहते हैं। तो आई राइट उसी टाइम आइदर ऑन माय फोन और या फिर रजिस्टर तो मेरा चलता रहता है लाइक, तो मैं उसमें लिख देती हूँ एंड इट हैपेंस स्मूथली एंड इजीली हो जाता है सब कुछ। ओके, इट रियली वर्क्स। ओके, थैंक यू गोपा दी, थैंक यू। आई ऑल्सो डू इट, लाइक माने हफ्ते में एक बार तो हम करते ही करते हैं। माने कुछ हमको लगता है ना कोई चैलेंजिंग क्लाइंट है, हाँ, या कुछ जो ऐसी मेरे को लिखने में ज्यादा अच्छा आता है, मतलब ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है। ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए जनरली जैसे आता था ना वो थैंक यू की रास्ता एकदम क्लियर है, हम फटाक से टाइम पे पहुंच गए, यू नो दैट वे आई डू इट। उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं बोलते हैं, आई जस्ट से थैंक यू दैट द रोड्स आर सो स्मूथ एंड क्लियर, आई हैव रीच्ड माय प्लेस ऑन टाइम, यू नो, वो हम बोल देते हैं। तो आई डोंट, उसमें मिस हो जाता है मैग्निफिसेंट आउटकम, आई एम फोकसिंग मोर ऑन दैट, बट आई बिलीव कि उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होता है। Yes, Priyaji, I want to just share today. Today my Dee was shifting from Hadapsar to Chinchwad. So like she was searching for the home, and today my day was so hectic as it is Monday. I was in the school and I was dealing with the parents and my principal. But still, before going to that work, I just given a magnificent outcome that जैसे भी उसको पीजी या जैसे भी उसको घर चाहिए वो मिल जाए। And I just एक बार बोला, मैंने लिखा नहीं कुछ भी, but I just thought for that. I just gave a thank you and I left. And by 3 o'clock she gave me a call and she told कि चलो अच्छे से मिल गया है सब कुछ and done. Wow, very nice, very nice. क्योंकि वो 2-3 दिन से सर्च कर रही थी कि कुछ मिल जाए ऐसे। और अभी ऐसे लगता है ना कि दूर है, मतलब हर बार जा आ नहीं कर सकते हम लोग, तो और सामान भी इतना लेके कैसे घूमेंगे वगैरह। So just even she was giving that a magnificent outcome and even I gave like okay, very nice. So it More happened, yeah. Yes. Priyaji, it's me. Thank you. Priyaji, it's me, I said. I was wondering, Yes. I was wondering, I will ask her कि you know किसके बारे में बोल रही है, इनकी डॉटर इतनी बड़ी हो गई है, so I was just wondering, you know. Oh, thank you. Yeah. And I've seen this magic many a times because almost बहुत बार मैं magnificent outcome कर चुकी हूँ and I get the dramatic results of it. Yes. Instant, एकदम fast. पिछले Even I मैंने share किया भी था about the PG rent वाला 50% और 25% आ गया था. Same way. And now also when I was living that PG ना, actually that ma'am is supposed to, जैसे मैंने इमरजेंसी में बोला उनको, तो शी इज सपोज टू कट की 1 मंथ का वो प्रायर बोलना पड़ता है, अदरवाइज 1 मंथ का रेंट वो कट करते हैं. बट देन आई गिवन मैग्निफिसेंट आउटकम एंड की नो, शी हैज नॉट कट द 1 मंथ का रेंट एंड इट वाज फॉर माय सरप्राइज, शी हैज नॉट टेकन 1 मंथ का रेंट फ्रॉम मी, ओनली जस्ट एक 2000 रुपीज एज अ टोकन की, नहीं उतना तो मैंने कट करना ही चाहिए. So she has taken that from the deposit and remaining she has again transferred to my account. So that was again, it was unexpected, but then magnificent outcome worked here also. Yes, it works. It works. Yeah. I believe in this magic. It happens always with me, and it works 200% rather. Yeah. Okay. It's for sure, and that's very, very thank you to everyone for that. Yes, more magic to you, and yes, this place is wonderful and perfect for you. Yes. Full of positivity and good things. Yes. Yes. Thank you Priya, so much. I have a sharing also. Oh, please, बहुत दिन बाद sharing. Yes. गोपादी, बहुत दिन बाद आप sharing कर रहे हो क्या? 2 months पहले जब तुम्हारा लास्ट मैजिक सेशन चल रहा था ना, then I shared कि one of my top dream had come true. तो उसी से रिलेटेड है सेकंड भी. तो वो मतलब जब तब वी परचेज अ प्लॉट, मतलब खरीदा ऐसे, एंड लास्ट फ्राइडे हमने भूमि पूजन किया उसका, एंड नाउ द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट. और जैसे आई रोट इन माय मतलब ड्रीम लिस्ट, आई यूज्ड टू विजुअलाइज फॉर 7 minutes, एंड जैसे जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे हो रहा है. And now the construction will start with the plot. Wow, awesome. So let me share with you, those who don't know, Gopadi has been here since November. हर सेशन में आते हैं और बहुत शेयरिंग भी करते हैं और बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड करते हैं. She has inspired so many. Like yes, I have done a lot of gratitude for this particular dream of mine. मतलब अभी last month तो last 2 months से I have written so much, मतलब एक चीज को मैंने thank you किया था and the results have come.
जो ड्रीम एक्चुअली इट वाज अ ड्रीम ऑफ माय फैमिली, मतलब फैमिली बिजनेस कुछ ऐसा स्टार्ट करना था। लास्ट 25 इयर्स, आई एम मैरिड फॉर 25 इयर्स, और तब से लोग सब ने कोशिश की है बहुत ज्यादा, and the result has come because of this gratitude only. Wow. I believe it very much. Thank you Priya so much. Thank you, And thank you Tulsi also so for Yes. showing me the path. Yes, but गोपादी सिर्फ आपके ग्रेटिट्यूड नहीं किया है, आपको सब लोग पाथ दिखा सकते हैं, सब करते हैं, लेकिन देखिए चलना तो आपको पड़ता है, ठीक है? बिल्कुल आप बिल्कुल, प्रैक्टिस मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड बहुत प्रैक्टिस किया आपने, किया है बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रिया। Thank you, Gopadi, for this wonderful sharing and inspiring everyone once again. आपने जैसे बोला ना विजुअलाइजेशन, बोले हाँ बीच में ना विजुअलाइजेशन भी किया, काफी किया। मतलब जब सेकंड सेशन किया था मैंने तुम्हारे साथ, तो उसके बाद बहुत विजुअलाइजेशन दी 7 मिनट्स वाली। बिल्कुल वंडरफुल। तो आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि मैजिक क्यों होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, वो इसलिए होते हैं, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है? जितनी रोटी बनाएंगे उतनी वो गोल बनती है ना? बहुत दिन बाद बनाएंगे एक तो वो गोल बनेगी कभी, वो कोई मैप ही लगती है हमेशा, है ना? तो हर चीज में प्रैक्टिस करना ही करना होता है। यस, एंड दिस इज समथिंग कि आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तुरंत उसका रिजल्ट आता है, ठीक है? एंड जब आप जितना रिजल्ट प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। लाइक वो कहते हैं लाइक रियली हैप्पी कि आपका हो गया 25 इयर्स का फैमिली का ड्रीम इज हैपनिंग नाउ। वंडरफुल। यस प्रिया जी। हाँ यस श्वेता जी। हाँ मुझे पूछना था, जैसे आप ये कह रहे हो मैग्निफिसेंट आउटकम हमें जो करना है, कोई भी चीज के लिए कर सकते हैं, लाइक फॉर द किड्स या कहीं जाना हो या एनीथिंग एवरीथिंग, कुछ के लिए भी कर सकते हैं। ओके ठीक है। किसी के लिए भी, कि अब जैसे गोपादी ने तो बोला ना कि उनके बच्चों को बाहर जाना होता था, वो उसके लिए भी लिख देती थी, ठीक है? हॉलिडे पे जाना था, स्ट्रिक्ट जीजा जी हैं, अगर हमें चाहिए भी तो भी वी कैन डू इट ना। अगर हमें कुछ जैसे आई नीड इट, मतलब अभी अर्जेंटली, सो वो भी कर सकते हैं हम। माने जैसे क्या, आप एग्जांपल दीजिए क्या अर्जेंट? जैसे अभी मुझे लैपटॉप अर्जेंट चाहिए, मेरे बेटे का एक लैपटॉप खराब हो गया एंड इनके एग्जाम्स है नेक्स्ट वीक में। सो एक ही है हमारे पास, एक के लिए करने के लिए 2 है बच्चे। सो एंड माय हस्बैंड इज लाइक कि नहीं वो पुराने को ठीक करा लो एंड ऑल दोस, बट वो ठीक नहीं हो सकता। तो मेरे माइंड में है कि बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाला, टेंशन में है कि लैपटॉप इज नॉट देयर। तो आप बिल्कुल लिख लो उसके बारे में, that you know your kid is thank you for this magnificent outcome that my kid is using the new laptop, ऐसे लिखिए आप, हाँ, which is new laptop and he's doing his exams brilliantly, बस ऐसे आपको लिखना है उसके अंदर। ओके फाइन। एंड एक चीज और आपको बतानी थी, हमने फुट स्टेप्स किया था सैटरडे को। सो संडे मैं जनरली वॉकिंग नहीं जाती हूँ, मेरा थोड़ा आलस का दिन होता है so इसलिए थोड़ा लेट था। सो आज मैं गई थी मंडे, सो आई हैव टू स्टार्ट। सो मॉर्निंग में इट वाज लाइक कि जनरली आफ्टर 35 मिनट्स के बाद आई गेट वेरी टायर्ड। 35 मिनट वॉक के बाद इट कम्स टू 3,000 समथिंग कुछ होता है स्टेप्स। सो आज मैं हर स्टेप से व्हेन आई स्टार्टेड माय वॉकिंग में पूरा टाइम थैंक यू की हूँ, एंड आई डिड 5,600 समथिंग। एंड आई वाज लाइक कि 7:30 आई वाज लाइक कि मतलब मुझे लिटरली मतलब जाना है क्योंकि काम है। 7:30 से दैट वी स्टार्ट वर्किंग, सो इसलिए मैं घर में घुसी, नहीं तो अदरवाइज आई वाज नॉट एट ऑल टायर्ड। एंड इट वाज एक्सीलेंट। आई डोंट नो, वो पूरा बॉडी हल्का था। मतलब मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि वो स्टेप्स में थैंक यू बोलने से इट वाज टोटली लाइट। मतलब इट वाज लाइक कि मैं चली नहीं रही, इट वाज लाइक दैट। मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना ज्यादा मैं चली हूँ। तो एक अंकल ने कहा भी मुझे, हाउ कम यू आर वॉकिंग सो मच श्वेता टुडे? सो आई सेड नो, लाइक दिस ओनली, आई एम नॉट टायर्ड टुडे, आई एम नॉट सिटिंग। मैं जनरली बैठ जाती हूँ कहीं सीट पे जाके। So it's like that. So I walked today more than 5,000. Oh my God. I was like, awesome. That's very nice. Quite good. I would just want to add 2-3 things that we have to, all of us, we have to start being aware of what we are speaking. आपने जब बोला ना संडे को हम आलस करते हैं, आलस is a good word or a bad word? Oh no, it's not. It's so bad. you keep saying it is my day for relaxation. आप कुछ भी करो ना, like you have to be a little, all of us. Holiday day. Enjoying day. Enjoying day, relaxing day, chilling out day, आप ऐसे बोलो, ठीक है? एंड आपको बोला you are still feeling fresh, ये नहीं कि I was not tired, ठीक है? आप जितना ज्यादा आप नेगेटिव वर्ड्स हम लोग कम कर देंगे ना उतना अच्छा, जितना ज्यादा पॉजिटिव बोलेंगे उतना अच्छा है, ठीक है? क्योंकि वर्ड्स बिल्ड आवर वर्ल्ड्स,
है ना? तो वर्ड बिल्ड्स वर्ड्स, वर्ल्ड बार बोलते हैं, सॉरी, ठीक है? तो आप समझ ठीक है? Yes. For all of us, try and speak as much positive as possible, whether it's for your kids, for you, and especially for yourself. वो आने वाला है अमेजिंग प्रैक्टिस एक तो, ठीक है? एंड आप देखिए, ये कोई भी प्रैक्टिस ऐसी नहीं है कि बस आपको एक दिन करनी है, आपको रोज रोज अपने लाइफ में इसको एकदम इंस्टिल कर लेना है। वॉक वाला, फूड वाला, वाटर वाला, आप जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा, ठीक है? थैंक यू फॉर द शेयरिंग। Thank you. प्रिया ग्रेटिट्यूड करवा दूं पहले। हाँ, यस, थैंक यू। आई वाज जस्ट थिंकिंग बीच में, बट फिर शेयरिंग में वो चला गया। ओके, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स एंड क्लोज आवर आईज and pay gratitude to the supreme power. Thank you to the great almighty and the beautiful 5 elements of nature. Thank you for giving us this magnificent life. Thank you for filling our life with love, happiness and laughter. Thank you for the perfect health that we have got. Thank you for the good health of all my family and loved ones. Thank you. Who's that? Yeah. Ma'am, Yes, Khushi. How are you? I'm good. How are you? I'm great. Ma'am, I want to ask you that in our gratitude journal, can we say thank you? I mean, write thank you for someone who helped us years ago or Yes. long ago. Yeah. एकदम। अच्छा, okay. हाँ, जितना ज्यादा आप याद करके थैंक यू करोगे उतना अच्छा। I shared ना that I have thanked my school का आया दीदी. I don't remember her name, but my school आया दीदी is much before than your school आया दीदी. Okay, so you can go back as much as possible into your gratitude. Okay, you can do that. Okay. Yeah, but reason आपको याद होगा ना? Yeah, I know the reason. Yes, very good. You can do that. Okay, thank you. Thank you. Yeah. So any other question or sharing? मुझे एक क्वेश्चन है छोटा सा, हाँ, और एक शेयरिंग है। okay. अब जो अपन लिखते हैं उसमें हैंडराइटिंग से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता ना? नहीं। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा, लेकिन मैं एक बार पूछ लेते। Yes, देखिए, ऐसा शुरू में मेरे को ऐसा लगा था, because you know when many times when I would get up really early, तो आंख ना खुल भी नहीं रही होती थी, ठीक है? तो उस समय लगता था ना कि उठते तुरंत लिखना है। तब वो जो राइटिंग ऐसी होती थी ना, हमको लगता है ये राइटिंग हम तो नहीं पढ़ सकते, सिर्फ यूनिवर्स पढ़ सकता है। आई यूज्ड टू थिंक दैट इनिशियली। तो बाद में हमको लगा कि नहीं, अब थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो हमको भी जब दोबारा पढ़ना होता है ना, कितने बार हमको ही नहीं समझ में आ रहा होता दैट व्हाट हैव आई रिटन, यू नो, थोड़ा सा स्लीपी रहते थे। तो इफ यू कैन रीड इट, इट्स परफेक्टली फाइन। I can read it because I have written it. No, very good, but it happens ना, कितने बार ऐसा नहीं होता। Like I'll tell you, the many times I have only made notes on my book, ठीक है? और जब next session में आते हैं ना, तो हमको amazement में हो जाते हैं कि what have I written? I can't make it out on it. कभी-कभी नहीं होता कि जल्दी में लिख देते हैं तो नहीं समझ में आता है। So that is scribbling type का। तो तब इसीलिए if you can read it, then it's perfectly fine. हाँ, so it's okay. एंड एक और मेरे को शेयरिंग करना था। हाँ, एक मैंने थोड़े दिन पहले मैंने को एक जन के प्रति बहुत नेगेटिव फीलिंग थी, बिकॉज उन्होंने बहुत टाइम से पैसे वैसे नहीं दिए थे और समथिंग, यानी थोड़ा सा ऐसा आई फेल्ट चीटेड। Chaitra, if you don't mind, there is some music behind you, is it? Yeah, I think Adhiraj is बाबा ने 2 मिनट बोला ही थे। Adhiraj थोड़ा बाहर जाऊं बोल। हाँ, okay, thank you. Thank you. Yeah, okay. So हाँ, मैं क्या बोल रहा था? Yeah. So I thought, you know, I was feeling उन लोगों ने ऐसे थोड़ा सा ना चीटिंग किया whatever. तो फिर मैंने थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उनके लिए भी मैंने वो ग्रेटिट्यूड दे दिया। एक बार दिया आई थिंक, या 2 बार दिया, ऐसी नॉर्मल। तो नाउ आई बिलीव कि ये थोड़ा सा जो नेगेटिविटी जो था वो naturally is either gone or maybe it's like reduced by 95%. तो वो मुझे फिर थोड़ा सा ना पीसफुल लग रहा है अभी तो। नहीं तो अपन वही चीज में अननेसेसरी चीज कभी भी ध्यान में आ गया तो ऑटोमेटिकली वही चीज सोचते रहते हैं, नेगेटिव इमोशन थोड़ा सा आ जाता है। तो लेकिन अभी वो एकदम बहुत ही मैंने अब ठीक है, उनकी वजह से क्या पॉजिटिव इश्यूज हुए हमारे लाइफ में,
वो थोड़े से 1-2 बार हमने सोच के लिख दिया वगैरह, तो अभी एकदम बोला ठीक है जो हो गया सो हो गया एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन, ऐसा टाइप का थोड़ा सा भी फीलिंग आ गया. सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग व्हिच इज हैपेंड. यस डेफिनेटली एंड आप करते जाइए ग्रैटिट्यूड. और किसी का पेमेंट आना है तो राइट इट इन योर ड्रीम. ठीक है, थैंक यू, आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट द पेमेंट फॉर दिस एंड आई एम यूजिंग इट फॉर दिस. आप रीजन दे दो कि वो पैसे आए हैं तो आपने उसका क्या किया है. ठीक है, सो राइट इट कि वो पैसे आए तो आप उसका क्या करने वाले हो. तो इट विल हेल्प यू यूज ग्रैटिट्यूड इन अट्रैक्टिंग दैट मनी टू यू. ये ड्रीम के बहुत रेगुलरली लिखने हैं क्या? नहीं, देखिए आपको लिखने रोज नहीं है, बट इट इज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट. जो रोज लिखने वाले होते हैं वो दूसरा जन है. रॉन्डा बर्न हमसे ये कहती है कि हमको उनको पढ़ना तो चाहिए ही डेली. जैसे आपने कल भी पढ़ा हार्ट मैजिक के प्रैक्टिस में, आज आपने जो किया होगा, दैट यू हैव टू रीड इट. ओके, आप उसका विजन बोर्ड बनाओगे, आपको हर बार वो दिखाई दे रहा है. जितना ज्यादा आप ये सारी चीजें करोगे उतना जल्दी आपके ब्रेन सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड का जो चक्कर होता है ना, आपके वाइब्रेशन आपके थॉट्स में ही वो आता जाएगा. एंड ऐसा होता है ना, आप जिसके बारे में सोच रहे होते हो बहुत ज्यादा, कितने बार वही आ जाता है इंसान. तो आप उसको जैसी फीलिंग्स दे रहे हैं, जितना स्ट्रांगली फीलिंग्स दे रहे हैं, जितनी बार दे रहे हैं, उतना जल्दी वो आपके लाइफ में आएगा. ओके, that way. And each time you're seeing it and thinking of it, you have to be in gratitude. ये नहीं कि आप गुस्से में उसको सोच रहे हो कि अरे ये दुष्ट था, उसने पैसे नहीं लौटाए, ऐसा नहीं. सीरियसली ऐसा आ जाता है ना. तो आपको पॉजिटिविटी के संग, ग्रैटिट्यूड के संग उसके बारे में सोचना है, उस ड्रीम के बारे में. ओके, थैंक यू. अब आज तो आई थिंक टाइम नहीं बच रहा है ना विजुअलाइजेशन के लिए. कल का चैप्टर क्या है, कल का कर लेंगे. ठीक है, कल वी विल डू. इज दैट ओके? Yeah, okay. So any other sharing or question? कोई लोग अपने कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा. लाइक पूजा जी का आई कैन सी, उनका वो फोटो लगा हुआ है. ठीक है, एंड मेनी ऑफ यू आर स्टिल विद योर कैमराज ऑफ. लाइक आई डोंट नो अंजू जी इफ आई हैव एवर सीन यू. आरती जी का भी एक दिन आया था जब उनकी नोज रिंग इधर उधर हुई थी ना. आपकी हुई थी ना आरती जी? ओके, यस उसकी हुई थी आरती की. हाँ, तब उनका ऑन हुआ था. एंड बाकी जन भी ऑन एंड बीच बीच में आप लोग कर लिया करिए ऑन, तो अच्छा रहेगा. नाउ इट्स जस्ट 1 more week. फिर कभी मिलेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे सेशन में भी थे, है ना. अगले सेशन में मिल रहे हैं हम लोग. अगले सेशन में मेरे पल्लवी जी आपको तो पहचान ही लेंगे. ठीक है. अभी तो आपको छोड़ने वाले ही नहीं है. अभी तो मैग्नेट के जैसे चिपक गए आपसे. एकदम बहुत अच्छा लगता है. It's like we interact and I was feeling a little low because it was my fast. Okay, and initially खाने की example आ रहे थे बहुत ज्यादा. Now I'm feeling all energetic and happy, interacting and positive. अब बहुत अच्छा लगता है. सेशन ही आप इतना मैजिकल कर देते हो. Thank you. Okay, so more magic. and जिसने भी heart magic नहीं किया है, please अभी सोने के पहले do it, because like I told you in that session, they are telling us to think of our dreams before we go off to sleep as well. Okay, सब लोग मैजिक चेक अपना देख रहे हैं? हाँ, ठीक है, वेरी गुड. तो ये सब अपना एक जगह ऐसे एक ही जगह चिपका लीजिए सारी चीजें. ठीक है, तो आपको एक बार में दिख रही है. तो ऐसे जैसे हम लोग, नॉट अ गुड एग्जाम्पल, जैसे भगवान जी के रूम में जाते थे तो सबको देख लेते, वैसे ही एक जगह आपने चिपका लिया और सबको देख लिया. ठीक है, तो जितना ज्यादा देखेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना अच्छा रहेगा. ठीक है, सो थैंक यू एंड वी डू द विजुअलाइजेशन टुमारो देन. ओके प्रिया जी. हाँ, यस लतिका जी. आई नीड सम हेल्प फॉर विजन बोर्ड. ओके, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप कोई जो आपका मेन ड्रीम है ना, वो आप हमको भेज दीजिएगा. ठीक है, तो हम टिप्स बता देंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है. एंड समवन एल्स आल्सो सेंड मी समथिंग, उस पे भी आई विल वर्क एंड सेंड. ठीक है, तो उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन वर्क इट आउट. तुलसी इज नॉट हियर, अदरवाइज वो बनाने में भी हेल्प कर देती है. और इफ यू हैव समवन इन योर हाउस, अ यंग पर्सन, बच्चे लोगों को जनरली ये सब अच्छा रहता है, ये आता रहता है, आप उनको भी बोल सकते हैं करने के लिए. ठीक है, Ma'am, I have my vision board on my phone over here. ओके, वाओ, वेरी नाइस. कोई अपना शेयर कर सकता है तो समझ में आएगा ना. बिल्कुल बिल्कुल, छाया जी ने तो शेयर किया था ना. छाया जी कर देंगे, फिर से कर दे एक बार फिर. हाँ, थैंक यू. जितना ज्यादा छाया जी शेयर करेंगे ना, उतना ज्यादा छाया जी का भी ड्रीम को भी पावर मिलता है. सीरियसली, I'll do it. हाँ, छाया जी की ड्रीम से तो मुझे भी पावर मिल गए. बैंगल्स. हाँ, बैंगल्स, यस यस.
Bangles, yeah. By the way, थैंक यू Brahmi, छाया जी. I also went to a jewelry shop. I said नहीं मेरे को भी अब कुछ खरीदना है. Everyone is buying jewelry. ठीक है. तो मेरा जो मैजिक चेक मटेरियलाइज हुआ था, तो I was realize हुआ था, तो I went for that. कल खरीदा नहीं है, but I will buy it this week. Yeah. Yes, सविता जी आपका था ना? I'll share it with you. प्रिया जी मुझे कुछ पूछना था. हाँ. कि हम लोग जो टेक पे हम लोग लिखते हैं ना कि हम लोग को ये मनी फॉर दिस यूज चाहिए, जैसे कंपलसरी रहता है कि हम वो चीज यूज कर उसके लिए यूज करनी है कि हम कुछ और कर सकते हैं उसका? नहीं, मैजिक चेक के लिए जो आपने लिखा है आपको उसी के लिए यूज करना है. ठीक है. मैजिक चेक पे जो अमाउंट लिखा है, जो चीज को सोच के लिखा है ना, उसी के लिए उसी के वही खरीदना है उससे. अच्छा. ठीक है. आपको कोई दूसरा चीज और के लिए चाहिए, आप दूसरा चेक बना लो. ठीक है. अच्छा. अभी तुरंत नहीं लेना है, तो उसके वो पैसे साइड में रख दीजिए कि ये उसी सामान के लिए. ठीक है. इट्स लाइक आपने यूनिवर्स से कोई आपके बच्चों ने आपसे पैसे मांगे हैं कि चॉकलेट खरीदनी है और वो जाके कुछ और, तो यू विल नॉट वांट टू गिव देम मनी अगेन ना, है ना. तो जो चीज के लिए आपने मैजिक चेक में लिखा था उस वही चीज यूज करिएगा. ओके. आपका हो गया मैजिक चेक? Ma'am, under our vision board, do we have to write something? Because sorry, someone was talking. नहीं, I was saying that मैजिक चेक वो नहीं हुआ रियलाइज, बट मैंने ऐसे जस्ट पूछा कि उसी के लिए रखना है, हम लोग कुछ इमरजेंसी में कुछ और आ जाए तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं. इमरजेंसी में अब अच्छी चीजें, इमरजेंसी बोलना ही नहीं आपको. यस, तुलसी ने भी ये शेयर किया था. आप जैसे हम लोग करते हैं ना कि नहीं बुरे काम के लिए पैसे रखने हैं, नहीं वो सब नहीं करना है. ठीक है. आप पहले से ही बोल रहे हो कि ये पैसे दवाई के लिए खरीद रख लेते हैं पहले से ही. वाई? एकदम भी नहीं कि बुरे वक्त में काम आएंगे. बुरा वक्त आएगा ही नहीं. आप पहले से लिखोगे तभी तो आएगा ना वो. ओके. एकदम नहीं करना है. यस खुशी, थैंक यू फॉर दिस. या Ma'am, I was asking, do we have to write some like quotes or something in the vision board, because I have only put pictures, I have not written anything. When you write, it's more effective. Like when you see love, okay, yes, it means love. Otherwise, वो क्या है? When you're looking at it, you are inspiring yourself as well, है ना? So you write happiness, you write vacations, you write luxury. कुछ लिखने से तो वो और ज्यादा ब्रेन में इम्पैक्ट होता है that way. Okay, a diagram is good, but उसपे कुछ लिखा रहता है तो और अच्छा लगता है ना. अब card is good, but you know when there are some quotes written on it, you know nice things are written, तो वो पढ़ के और अच्छा लगता है. It gives feelings. Yeah, it gives me more feelings. Yeah. And उसपे thank you भी नहीं दिख रहा था. And खुशी उसपे thank you लिखना है, वो must है. ठीक है. वो बाकी चीज लिखो चाहे नहीं लिखो, but thank you लिखना ही है. My dream weight, my perfect weight, my my college, ऐसे करके लिखना होगा उसपे. ठीक है. ओके. सो थैंक यू लतिका जी. एंड प्लीज आप लोग जिसने विजन बोर्ड बना लिया है, आप शेयर करो. यू विल बी इंस्पायरिंग अदर्स. प्लस क्या होता है, कुछ मिसिंग होता है तो उससे दूसरे जन आइडिया भी दे देते हैं, कुछ दूसरे सजेशन दे देते हैं. छाया जी उसमें अब आपने अपनी फोटो लगा दी ना पैसे के नीचे. हाँ, अनम्यूट कीजिए. हाँ, आप अनम्यूट कीजिए. अनम्यूट नहीं, अभी नहीं लगाई हूँ, कल लगा के वो फिर विजन बोर्ड डालूंगी. आपको भेजना होगा तो आपको ठीक करके ही भेजना होगा. यस, वेरी गुड. श्योर. मुझे हमेशा छाया आंटी का एक बहुत याद आता है, क्योंकि वो जब फर्स्ट टाइम उन्होंने शेयर किया था कि उन्होंने 5 lakhs का चेक लिखा था और वो कार के लिए लिखा था. और वो सोच रहे थे कि अभी घर में है इतनी सारी कार तो सेकेंड हैंड ले लेते, लेकिन उनके लिए वो नई कार ही आई और 5 lakhs में ही आई. So I remember that thing so perfectly. Okay, if we have kept something that amount for something, we have to get that only with that. Yes, true. Yes. तो सही हुआ. मैं कितनी बार हम लोग सेकेंड हैंड कार देखने गए पर वो नहीं खरीदना हुआ, तो नई गाड़ी आई है. आपने सोचा ही न्यू कार था ना, इसीलिए. या चारू जी, आप डे 13 पे थे क्या? You were asking about vision board. तो आप नहीं थे तो आप एक बार डे 13 का चैप्टर पढ़ लीजिएगा. उसमें एक छोटा सा ही पैराग्राफ लिखा हुआ है. इट्स लाइक योर विजन बोर्ड. या सीक्रेट मूवी में भी इसके बारे में था. ठीक है. तो आप डे 13 का चैप्टर पढ़ लेना. एंड देन जब सब लोग ग्रुप में शेयर करेंगे आपको दिख जाएगा व्हाट इज अ विजन बोर्ड. ठीक है. सीक्रेट मूवी में तो बहुत अच्छे से दिखाया है. वो आदमी ने जैसे घर इमेजिन किया था, उसी घर में वो रह रहा है और उसके बच्चे ने जब वो निकालता है विजन बोर्ड के उसके सब,
Then he realized कि yes, I have imagined and I am living in the same house. Same house. It was very wonderful, amazing. यस इसीलिए हमने भी ऐसे ही किया, एक ऐसे घर की फोटो नहीं, हमें बताना नहीं चाहिए ना, ऐसे ही एक फोटो चिपकाई है जहां हमको जाने का मन है, ठीक है, वेयर आई वांट टू स्टे, वेयर आई एम स्टेइंग, सॉरी, हाँ, उसी का फ्लोर प्लान भी चिपका लिया गूगल करके, ठीक है, आई हैव डन दैट। ओके, सो लेट्स मीट टुमारो एंड प्लीज आप लोग हार्ट मैजिक कर लीजिएगा। एंड आई वुड सजेस्ट कल से जब आप ब्लेसिंग्स के बाद इफ यू हैव टाइम, जस्ट यू नो एक दो, आपको 10 नहीं पढ़ने का टाइम मिल रहा है तो जस्ट 1 or 2 रीड इट, यू नो। हमने तो पिछले बार में ये किया था, अभी आई हैव टू डू इट अगेन। आई हैड केप्ट माय ड्रीम लिस्ट जो डे 13 पे पेपर में लिखा था ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड केप्ट इट इनसाइड माय फोन कवर, कि कहीं भी बैठे हैं तो एटलीस्ट एक बार दिन में उसको पढ़ लेते थे। आई वुड डू दैट। तो आपको ऐसा नहीं करना है तो आप उसकी फोटो क्लिक करके अपने फोन में रख लीजिए एंड रीड इट व्हेनेवर यू हैव टाइम। आपको लगता है कि नहीं व्हाट्सएप के मैसेजेस, एक बार होता है ना कि इतना इंस्टाग्राम देखते हैं लाइक अननेसेसरली देखते रह जाते हैं, तो उसके बजाय आप एक टाइमर लगा लो कि यस इतने बजे हम अपनी ड्रीम्स पढ़ेंगे, ठीक है। डू दैट, यू हैव टू मेक दैट स्ट्रक्चर फॉर यू कि दिन में एक बार आप ड्रीम्स पढ़ लो अपने, ठीक है। और मे बी आप पूजा करते हैं सुबह, तो पूजा के बाद आपने खाली एक बार अपनी ड्रीम्स पढ़ ली, ठीक है, राइट देयर इन फ्रंट ऑफ भगवान जी। आपको सुबह टाइम नहीं है तो शाम को कर लिया दैट वे। वैसे भी अभी हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा 7 days तक के बाद, तो आप एक शाम का एक ऐसा रूटीन बना लो कि मैजिक रॉक के बाद करना है या उसके पहले करना है। मेक दैट इनटू अ हैबिट, ओके। सो थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन और शेयरिंग? नहीं, मुझे क्वेश्चन है। हाँ, मुझे क्वेश्चन ये है कि अभी आप आई थिंक बहुत अगस्त या सितंबर से कर रहे कंटिन्यूअसली बुक रीडिंग एंड ऑल दैट, तो फ्रॉम वेयर यू आर फाइंडिंग द पैशन, बिकॉज यू आर डूइंग इट एज अ वॉलंटरी सर्विस, तो रोज रात को उतने ही लोग और वही सवाल इतने सारे लोग पूछते रहेंगे, तो फ्रॉम वेयर डू यू गेट दैट पैशन? See, I feel so positive when I'm interacting with people. मेरे को बहुत अच्छा लगता है। Started off with that thought, okay? But अब जब हम कर रहे हैं, शुरू में हमको लगता था कि नहीं हमको करना है प्रैक्टिस, इसीलिए हम कर रहे हैं, 2 जन के संग में करेंगे तो उनको कराने के चक्कर में हम कर लेंगे, वरना जैसे नहीं होता है कि आज वॉक नहीं करते हैं कल चले जाएंगे, यू नो ऐसा हो जाता था ना। तो नाउ आई फील यू नो जब 1-2 शेयरिंग आती है तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक यू नो बिकॉज ऑफ माई explanation, maybe you know someone did that and उनके लाइफ में maybe एक चेंज आया, एक उनके थॉट अच्छा आया पॉजिटिव, तो अच्छा लगने लगता है। लाइक I've shared this, but I used to become very low and negative initially in the sense like before this book, तो मेरे में बहुत चेंजेस लगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि एक इतना सा सोचने से कि थैंक यू करना है खाली, हाँ, बोलने के पहले सोचना है। सब लोग बचपन से बोलता रहे सोच के बोला करो, लेकिन कैसे सोचो, माने क्या सोचो कि अच्छी बातें ही निकले, वो नहीं दिमाग में आ रहा था। तो वो इस बुक से समझ में आया। सीक्रेट बुक भी हम पढ़ चुके थे, मूवी बाद में देखी, बट सीक्रेट बुक तो और पहले, बहुत पहले पढ़ चुके थे। एंड आई एक्चुअली फेल्ट दैट, उसमें वो था ना कि इमेजिन दैट द स्टीयरिंग इज देयर अंडर योर हैंड, वो था ना, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव बट आई वांटेड माय कार, एंड यू नो मैंने वो बुक पढ़ी और ऐसे इमेजिन करते थे, हाँ, कि वो इमेजिन योर हैंड्स, अच्छे से हाथ देखो एंड डू दैट। आई डिड दैट एंड यू नो व्हाट, आई बॉट अ सेकंड हैंड जेटा, ठीक है, एंड माय विदाउट टेलिंग माय फैमिली, दे वर फ्यूरियस, तुमने किसी से पूछा नहीं, जाके एक जेटा सेकंड हैंड खरीद ली। एंड वी आर लाइक सेकंड हैंड कैसे खरीद सकते हैं टाइप्स उस समय। अच्छा, मेरे बजट में वही आ रही थी सेकंड हैंड, तो हमने ले ली। तो आई कुड सी द पावर ऑफ यू नो दिस, कि मैंने सोचा और ले ली ऐसे। तो कैसे वो मेरे को मिल गया और आ गया। मैंने फिर भी ड्राइव नहीं की, बाद में उन्होंने सेल करा दी मेरी कार, ठीक है, मेरे फैमिली ने, बट हमने देखा कि तो एक्चुअल में हो गया। एंड इट वाज नॉट दैट आई वाज ड्राइविंग, मैंने इमेजिन कार ही की थी और आ गई। आई वाज थिंकिंग तो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं तो आ सकती है। तो उस समय हमने ये देख लिया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता कैसे है, बट उसके बाद उसको कैसे यूज करें, कैसे है ये, वो सब इस बुक से सीखा। एंड आश्विन मैम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए कि नहीं कि शी हैज अ डिफरेंट, आप लोगों ने किसी ने सुना है उनका सेशन आश्विन मैम का? इट इज देयर ऑनलाइन, इफ यू वांट यू कैन जस्ट लिसन टू इट, शी इज अमेजिंग। और उनके जो लाइव सेशंस करते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। तो वॉलंटरी का पता नहीं, हमको लगता है जब बीच में ब्रेक आता है ना तब लगता है अरे ये पिक्चर देखेंगे, वो करेंगे, ये बुक्स पढ़ेंगे, बट फिर वो मिस करने लगते हैं कि ये पॉजिटिविटी इज लाइक यू नो, ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस ही नहीं हो रही अब, तो ऐसा होने लगता है। तो व्हेन आई एम डूइंग द सेशन विद एवरीवन, तो वो एक कनेक्ट रहता है। व्हेन आई एम टेलिंग यू कि नहीं आप अपना चेक देखिए,
अपना कोट पढ़िए. It is not just telling you, I'm telling that to myself also. So in a way, you know, you guys are inspiring me to do the practices every day. मेरे को ऐसा लगता है, वैसे हो रहा है. Otherwise अभी हम लोग सब लोग क्या कर रहे होते हैं आप बताइए? चैनल देख रहे होते कोई ना कोई, है ना? यही कर रहे होते. हाँ वही कर रहे थे. वही कर रहे थे. चैनल भी नहीं, अभी तो चैनल कोई देखता नहीं, यूट्यूब भी देखते रहते. हाँ यूट्यूब देखते रहते हैं, या नहीं तो पता नहीं क्या क्या, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम. हाँ अब तो जैसे बोलते ना कि किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलने या सोचने के पहले में एक बार लगता है कि नहीं ऐसा बोलेंगे तो मेरे बारे में भी कोई कुछ बोल रहा होगा. एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट वेटिंग, आई हैव टू राइट अबाउट दैट. इससे याद है दैट आई विल राइट दैट माय सिस्टर्स आर आल्सो डूइंग दिस बुक. आई रियली वांट देम टू डू, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि मेरे को पहले जैसे कुछ भी होता था ना, आके मम्मा आज क्लाइंट ने ऐसे कर दिया, मिस्त्री ने ऐसे किया, अब ऐसा लगता है कि काफी चीजें बदल गई हैं दैट वे. एंड आप लोग अपने लाइफ में भी देखना कि वो जो पहले डिफरेंटली में भी आप लोग पहले से अच्छे हो गए होते हैं, बहुत सारे जाना चाहते हैं उनकी लाइफ में और जल्दी जल्दी. मैं पहले से अच्छा ही हूँ. हाँ आप तो अच्छे हो, यू आर टॉकिंग टू ट्रीज राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. नहीं ऐसा नहीं रहता एक्चुअली, हर आदमी का एटलीस्ट 3 या 4 टाइप का बिहेवियर रहता है, या एक पर्सोना रह सकता है. एक हो गया हाउ ही इज विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक हो गया फिर वो उसके इंटरनल फैमिली के साथ कैसा है, और एक हो गया उसके साथ कैसा है, मन के साथ कैसा है. उसमें बहुत यानी तीनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है. यानी सो इट डिपेंड्स हाउ द पर्सन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ फॉर थिंग्स, और क्या हो सकता है. जरूरी नहीं है कि बाहर सबसे ज्यादा अच्छा है तो घर में भी अच्छा ही होगा. हाँ एकदम ठीक बोल रहे हो आप, एकदम ठीक बोल रहे हो. हाँ टोटली सामने वाले को लग सकता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट मे बी घर वालों को लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही बोरिंग है, या फिर खुद को ही उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि यार मैं तो वैसे सैड हूँ या नहीं. अभी या तो जी अभी ये सब मत बोलिए, अभी एक प्रैक्टिस आएगी ना, वो सब समझाएगी कि हम लोग को अपने बारे में भी क्या बोलना है, कैसे बोलना है. नहीं मैं बता रहा हूँ, मतलब है डिफरेंट है ना, एक ही पर्सन का अलग अलग जन को अलग अलग ये आ सकता है. मतलब डेफिनेटली या बॉस को आप एक तरह के लगते होंगे, बच्चों को आप एक तरह के लगते होंगे, है ना, आपके स्टाफ को आप एक तरह के लगते होंगे. इट्स लाइक वन पर्सन हैज, जितने जन से हम लोग इंटरेक्शन करते हैं सबका एक डिफरेंट परसेप्शन होता है हमारे बारे में. कुछ कुछ चीजें सेम होती होंगी बट हर जन का एक डिफरेंट होता है. राइट. अभी जैसे लाइक इन आई विल नॉट डू अ सेशन इन जुलाई, you know, after this book ends. अभी जुलाई में तो नहीं करेंगे. If I do it in August, बच्चों को भी कुछ बोला हुआ था कि हाँ किड्स का सेशन भी करेंगे. So I don't know कैसे मैनेज करेंगे. ठीक है. So फिर हम लोग क्या करेंगे जुलाई में? जुलाई में देखिए ना, और लोग करते रहते हैं सेशन. I'll share it in the group if they are doing. आप बिल्कुल कर लेना उनके संग. Ma'am, our youngsters group, that Archit and all, they all are waiting to do your sessions. Which one will you join now? I will join, ma'am. I will join that also. I will join. I mean, unless I don't feel that I have understood this book 100%, ma'am, because this book is like maths. Maths बीच में छोड़ दोगे ना तो वो the touch is gone. So that is why you have to keep on doing it. Yeah. Yes. Thank you, Kushi, that you've understood. But you also have to smile more and sleep a little more. Okay. Yeah. Yes. Okay. So thank you, Chaitra, for this, you know, inquisitiveness. Okay. Thank you. Keep doing. and जैसा हमने आपको बोला ना, जिसको आपको बुक देनी है आप उसको बुक दे दो. ठीक है. और पल्लवी जी आप लोग तो कितने बार 2 बार कर ही चुके हो ना, कि और भी ज्यादा बार कर चुके हो ना. ठीक है. 2 बार कर चुके ना. You start your session. Kushi, when you told your friend, you must have felt nice ना, है ना. So you should be starting it with, you know, maybe your school friends, your cousins. You should start that. बहुत अच्छा लगेगा. फिर ये जो मैथ्स वाली चीज है ना, लाइक बिल्कुल यू आर करेक्ट. देयर आर सो मेनी टाइम्स, यू नो, कि कुछ एक वर्ड उसी समय लगता है कि हाँ ये पिछले बार इस पे ध्यान नहीं गया था. एंड व्हेनेवर यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस, डू द प्रैक्टिसेस एज इफ यू नो कि बस यही आज की रामबाण यही है, एलोवेरा आज का यही है. ठीक है. तो डू इट लाइक दैट. ओके. So I think let's catch up tomorrow, because tomorrow is another wonderful exercise practice. Yeah. Okay. So good night, more magic to all of us, and thank you. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Good night.